सिस्टम वो ऑपरेट करना Assalamu alaikum everyone. Welcome to another round of our exciting workshop on communication and time management. In this session, we have partnered with Sardar Bahadur Khan Women University and is brought to you all by Circle Women Pakistan, whose mission is to advance women's economic participation and empowerment through innovative entrepreneurship, advocacy campaigns, and research. We develop and support the entrepreneurial and leadership capacity of women and youth in Pakistan to bring about economic growth and social change. Some of the initiatives by Circle include Tech Karo, She Loves Tech, and Elevate. Circle believes that it is critical for Pakistan's progress to invest in youth, especially women, to build their confidence, capacity, and create platforms for them to bring their ideas forward. These workshops are supported by Friedrich Naumann Foundation for Freedom, which aims to contribute to the enhancement of soft skills in the field of entrepreneurship, business management, strategic communication, business leadership, and responsible citizenship. Today's session will be conducted by our very talented trainer, Ms. Umme Kulsoom. She is a communication and non-profit management consultant from Karachi. She has worked with UNICEF and USAID on several projects as a communication specialist. She has been a radio broadcaster in the past, having worked with FM 100 and FM 107. She is a certified neuro-linguistic programming practitioner and has worked with individuals and organizations for creating awareness campaigns around mental health, mindfulness, and quality lifestyle. She is also running a social enterprise called Tarkashi, promoting local crafts of Pakistan. So, without any further delays, I welcome our trainer, Ms. Kulsum. Over to you. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope everyone's doing well. माशाल्लाह से बहुत अच्छा टर्नआउट मुझे लग रहा है. I don't know why I'm not able to see the participants. आप लोगों की वीडियो अगर ऑन है तो प्लीज मुझे बता दें क्योंकि मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही हूँ. Yes, they are visible. Let me just pin them so that. Can you see the participants now? Let me see. One second. No, unfortunately not. Okay, now I can. अब मुझे नजर आ रहा है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हाथ हिला दें यार आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए. फैंटास्टिक. सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू द टीम ऑफ सर्कल के माशाल्लाह इतना जबरदस्त उन्होंने इनिशिएटिव क्रिएट किया है. और आप लोग की यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा पढ़ रही थी आप लोग के यूनिवर्सिटी के बारे में. तो क्वेटा में है, सर्दियां ठीक ठाक होंगी मेरे ख्याल से. तो उस सर्दी में और स्पेशली आप लोगों का जो है वो एंथुजियाज्म इस प्रोग्राम के लिए काबिल तारीफ है. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को भी कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी. अच्छा, अगर मुझे कोई ब्रीफ कर दे कि इस वक्त कितने पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद हैं टोटल, एंड क्या सारे लोग क्वेटा से हैं या डिफरेंट एरियाज से हैं बलूचिस्तान के. सहर अगर आप थोड़ा सा बता दें प्लीज. Are you there, Seher? Yeah, I'm here. Okay, so अभी हमारे पास जितने participants हैं सारे ये कोयटा के ही हैं, सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी के. तो I think I can ask the representative कि वो मुझे count बता दें. ठीक है, श्योर. मीनवाइल जब तक वो टाइम ले रहे हैं, आप लोग सबसे पहले तो वर्कशॉप स्टार्ट करने से पहले हम अगर सबके पास पेन पेपर राइटिंग का कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर पेन पेपर नहीं है तो आप लोग के सेल फोन्स हों बेशक जिस पे आप नोट्स बना सकें, जिसके पास कंप्यूटर है वो कंप्यूटर पे लिख सके, बट एनीथिंग जिसमें आप लोग जो भी मैं बातें बताऊंगी वो नोट कर सकें. उसकी रीजन ये है कि जितनी भी नॉलेज या कोशिश करूंगी मैं कि जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो सारी की सारी प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज होगी.
और उसमें नोट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप गो थ्रू करेंगे बाद में तो आपको आइडिया होगा कि क्यों ये नोट्स मैं बनवा रही हूँ और किस तरह से वो कारआमद साबित हो सकते हैं। टॉपिक है आज का टाइम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। फोर्टे मेरा कम्युनिकेशन है, टाइम मैनेजमेंट पे भी मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, और दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी पर्सनल ज़िंदगी के लिए भी, प्रोफेशनल ज़िंदगी के लिए भी, और जनरली लाइफ में क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए आपको इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम करना होता है। तो एक छोटे से टास्क से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबके पास जो है वो लिखने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट पहला स्लॉट होगा, उसमें फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, और उसके बाद फिर हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, देन हम कम्युनिकेशन का सेशन स्टार्ट करेंगे। टाइमलाइन कुछ इसकी इस तरह से होगी कि हम टाइम मैनेजमेंट में बात करेंगे कि आप अपने लिए किस तरह वक़्त निकाल सकते हैं, ठीक है? आप औरों के लिए कैसे वक़्त निकाल सकते हैं, काम के लिए किस तरह वक़्त निकाल सकते हैं, और इन सारे चीज़ों को जब आप टाइम दे रहे होते हैं, या आपका पूरा का पूरा दिन जिन-जिन चीज़ों में गुज़र होता है, उसको किस तरह बेहतर मैनेज कर सकते हैं और किस तरह बेहतर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो पहला टास्क एक वार्म अप एक्सरसाइज़ है, आपने एक टू डू लिस्ट बनानी है। सिर्फ़ हाथ रेज़ करके बता दें किसी को पता है टू डू लिस्ट क्या होती है? स्क्रीन आप फैसिलिटेट कर अब बता दें कोई एनीबॉडी। कोई भी। लैपटॉप पे इधर इधर आ जाए। हाँ जी जी। लैपटॉप नीचे 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 नाउ शी विल टाइम नीचे करे हो। हाँ जी। टू डू लिस्ट वो चीजें होती है जो भी करनी होती है। सो वी हैव टू मेक अ लिस्ट कि ये चीजें हैं जो मुझे आगे जाके करनी है, या मेरे बकेट लिस्ट में होती है कि ये चीज मुझे करनी है। जबरदस्त। चलो, इससे बेहतर आंसर कोई हो नहीं सकता था। तो आपने अभी थोड़ा सा टाइम निकाल के, मे बी 2 मिनट ले लो, 1 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, आपने एक टू डू लिस्ट बनानी है अपने आज के दिन की, ठीक है? कि आज मुझे ये काम करने हैं। आप जिस भी तरह से बनाए, उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपने एक टू डू लिस्ट बनानी है, ठीक है? आपका टाइम अभी शुरू होता है, और 2 मिनट बाद जो है वो हम आगे आगे जो है वो वर्कशॉप को कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट। स्क्रीन अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि मेरी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है सबको? या मॉडरेटर बता दें प्लीज, अगर मेरी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है। मैंने स्क्रीन शेयर की है अभी। जो माइक के सबसे ज्यादा करीब है ना, प्लीज मुझे बता दें कि प्रेजेंटेशन मेरी नजर आ रही है। जी, आपकी प्रेजेंटेशन विजिबल है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो कोई पार्टिसिपेंट आके शेयर करना चाहेंगी अपनी टू डू लिस्ट? कोई भी एक वॉलंटियर कर ले और अपनी टू डू लिस्ट जो है वो सबके साथ शेयर कर लें।
find the task that was to-do list. Briefly, I say to-do list be the task which have been assigned to me to do today. I have been assigned by myself so many works, including we have to celebrate a party after this session. Okay. I will move from university, and Okay. after that I will do my duties, and then I have to manage my time as for studies, which I have been assigned an assignment today, and I have to wash clothes in the night. ओके ओके फैंटास्टिक फैंटास्टिक ठीक है तो आपको पता है कि आपके आज के क्या क्या काम है ठीक है इस चीज को हम सेशन के एंड में इस्तेमाल करेंगे आपने जो अपनी लिस्ट बनाई हुई है ना सबने वो संभाल के रखें क्योंकि सेशन के एंड में जब आप देखेंगे तो आपको बहुत वाजे फर्क महसूस होगा कि जो भी आप सीखेंगे और फिर आप अपनी लिस्ट पे रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे ठीक है सो हम स्टार्ट करते हैं कि मैनेजिंग टाइम फॉर सेल्फ आपके अपने लिए वक्त निकालना क्यों जरूरी है और उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं ठीक है मैं इंग्लिश भी यूज करूंगी उर्दू भी यूज करूंगी व्हाटएवर इज कंफर्टेबल फॉर यू प्लीज मुझे आप लोग सेशन के बीच में कभी भी इंटरवीन करके बता दीजिएगा सो व्हेन इट कम्स टू सेल्फ जब हम अपने बारे में बात करते हैं कि अपने लिए हमने टाइम निकालना है तो अपने लिए टाइम निकालने में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं हमारी पर्सनल हाइजीन हमारी पर्सनल हेल्थ जिसमें यू नो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपने शावर लेना है आपकी ग्रूमिंग करनी है ठीक है उसमें आपने बाल बनाने हैं बाल संवारने हैं चूंकि सारी खवातीन हैं तो मैं जो है वो फीमेल ओरिएंटेड उसको थोड़ा सा फोकस लेके चल रही हूँ यू नो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जो है वो अच्छी दिखें अपने आप को आईने में देखा आपने और दिन का एक पर्टिकुलर हिस्सा आपने देखा एंड देन यू रियलाइज कि अच्छा मुझे इस चीज की जरूरत है मुझे उस चीज की जरूरत है यू नो ऑल द ग्रूमिंग टेक्निक्स जो कि हम लड़कियों को अच्छा लगता है करना इसके अलावा मेडिटेशन ठीक है अपने लिए आपने खामोश कोई ऐसी जगह मुतय्यन कर ली कोई ऐसी जगह पे आप जाके बैठ गए where you feel there is calmness there is quiet space and then you are talking to your own self that comes under self care इसके अलावा प्रेयर नमाज पढ़ना कोई क्रिश्चियन है तो वो चर्च जा रहे हैं कोई हिंदू है तो वो मंदिर जा रहे हैं या इवन अपने घर में भी जो है वो इबादत कोई भी किसी भी तरह की इबादत कर रहे हैं अगर that is also self care इसके अलावा खाना पीना जिंदगी की जरूरियात में शामिल है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके लिए वक्त निकाल रहे हैं एंड देन फिटनेस वर्कआउट्स आपकी सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज करना वॉक के लिए जाना अगर वॉक के लिए नहीं जा रहे तो घर में एक्सरसाइज किसी न किसी तरीके की कोई जिम अगर जा रहा है दैट्स वेरी गुड कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है दैट्स आल्सो वेरी गुड ये सारी चीजें सेल्फ केयर के अंडर आती हैं ठीक है सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या चीजें किस किस कैटेगरी में आती हैं उसकी वजह यह है कि जब आपको ये समझ आ जाएगा ना कि हम कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं चीजों को क्योंकि बाज़ औक़ात हमें रियलाइज नहीं होता है कि हम किस चीज को किस जिम्मे में लेकर आ रहे हैं अच्छा मैनेजिंग टाइम फॉर अदर्स अब एक वक्त आपका अपने लिए है और एक वक्त आपका किसके लिए है औरों के लिए है अब औरों में कौन कौन शामिल होता है बाय द वे ये प्रेजेंटेशन मैं शेयर कर दूंगी इसके साथ एक बहुत जबरदस्त सा मैं फोल्डर जो है वो आप सबको भिजवाऊंगी जिसमें बहुत सारी जबरदस्त किस्म के आर्टिकल्स टूल्स होंगे टेक्निक्स होंगी और इसके अलावा एप्लीकेशंस होंगी जिनका आप बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठा के टाइम मैनेजमेंट को सीख भी सकते हैं और उसको अप्लाई भी कर सकते हैं ठीक है सो डोंट वरी अबाउट द प्रेजेंटेशन मगर जो नोट्स हैं जो चीजें आपको यहाँ नजर नहीं आ रही हैं जो मैं वर्बली बता रही हूँ यू कैन मेक अ नोट ऑफ दैट अच्छा मैनेजिंग टाइम फॉर अदर्स ना हु आर अदर्स औरों में कौन कौन शामिल है देयर पेरेंट्स ऑफ कोर्स माँ बाप आपके बहन भाई हो गए वो आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है फैमिली फ्रेंड्स हो गए फैमिली के बाद हम फ्रेंड्स को सबसे ज्यादा उनकी केयर करते हैं उनका ख्याल रखते हैं पार्टनर्स हो गए जिनकी शादियां हो चुकी हैं या जिनकी मंगनियां हो चुकी हैं यू नो उनका भी हमें ख्याल रखना होता है मेरा पेट्स किसी न किसी का कोई ना कोई अगर पेट है किसी ने कोई चिड़ियाँ पाली हुई हैं कोई और भी जानवर पाला हुआ है यू नो तो वो भी अदर्स में आते हैं नेबर्स पड़ोसी आपके सोसाइटी इन जनरल आपका माशरा आपके आसपास के लोग आप कॉलोनीज में रहते हैं कम्युनिटी में रहते हैं कहीं पे भी रहते हैं एंड देन आपके क्लासमेट्स बैचमेट्स जो लोग आपके साथ पढ़ते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं मैनेजिंग टाइम फॉर वर्क ठीक है अब काम में क्या क्या शामिल है काम में शामिल है जनाब असाइनमेंट्स जो आपकी यूनिवर्सिटी के आपको दिए जाते हैं आपकी पढ़ाई में 10,000 चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपका यू नो रीडिंग हो गया क्विज़ेस हो गए यू नो एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो पढ़ाई के ज़िम्मे में आती है
प्रोजेक्ट्स हो गए, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कहीं ना कहीं से जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं जिस पे आप लोग काम कर रहे होते हैं वो भी काम के अंदर आते हैं। जो आप कोर्सेज ले रहे होते हैं वो भी आपके काम में आते हैं। जैसे ये एक अलग कोर्स है, राइट, यूनिवर्सिटी के करिकुलम में शामिल नहीं है, सिलेबस में शामिल नहीं है, मगर अलग से आप लोगों के लिए ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है और कोर्स पूरा आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। तो वर्कशॉप्स हो गई, इस तरह की चीजें, वो भी काम का हिस्सा हैं। फ्रीलांसिंग, अगर आप में से कोई ऑलरेडी कुछ छोटा मोटा अपना काम कर रहा है, किसी का कोई अपना छोटा सा बिजनेस है, या इवन अगर कोई खुद से कोई राइटिंग की जॉब कर रहे हैं या किसी न किसी तरह का आई होप कि फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो कि वो काम जिसमें कोई आप बाउंड नहीं होते, किसी के साथ कोई 9 to 5 आप जॉब नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने टाइम के हिसाब से आप काम कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो मे बी वो भी आप अगर काम कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो वर्क। ऑन साइट जॉब, कहीं पे आप स्टडीज के साथ साथ में भी 3-4 घंटे किसी को पढ़ा लिया, किसी ने घर में ही कुछ ट्यूशन पढ़ा ली, या इवन बाहर जाके भी किसी ने टीचिंग कर ली। अगर लेट्स सपोज विद यूनिवर्सिटी जो है वो आपने अगर एनीथिंग कोई और साइट पे आप जॉब कर रहे हैं, किसी की वर्कशॉप पे जाके बैठ रहे हैं, किसी बुटीक पे जाके बैठ रहे हैं, वो भी ऑन साइट जॉब होती है। रिमोट वर्क, घर से बैठ के अगर काम कर रहे हैं। और हाउस होल्ड चोर्स, घर के जितने काम है आपके, खाना पकाना, कपड़े धोना, घर में घर संभालना, घर के खर्चे वर्चे चलाना, फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें जो है वो हाउस होल्ड चोर्स में आती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा पार्टिसिपेंट्स को भी इंक्लूड करना चाहूंगी क्योंकि बोरिंग हो जाता है बहुत ज्यादा अगर सिर्फ जो है वो मोनोटोनस एक टोन में हम चलते रहें। अभी तक समझ आ रहा है? ठीक है, आर वी गुड? अगर कोई एक्नॉलेज कर दे मुझे थोड़ी सी आवाज आ जाए। एनीवन? मेरी आवाज आ रही है? Yes, we can hear you. ओके, फैंटास्टिक। बस मुझे एक्नॉलेजमेंट टाइम टू टाइम आप लोग देते रहें ताकि मैं कंटिन्यूड I रखूं। think they have the classroom setup ना, तो उनके पास कोई म्यूट अनम्यूट करने के लिए बैठा हुआ नहीं है, so maybe they can raise their hands to like acknowledge. श्योर, प्लीज किसी भी तरीके से मुझे अगर एक्नॉलेजमेंट मिल जाए तो दैट बी ग्रेट। ठीक है। अच्छा, मैनेजिंग टाइम फॉर लेजर एक्टिविटीज। अच्छा, अब लेजर एक्टिविटीज में क्या क्या शामिल होता है भाई? मूवीज देखना, ड्रामे देखना, जो कि हमारा फेवरेट मसाला होता है। यूट्यूब पे वीडियोस देखना। अब चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हमारे फोन्स तक है, मतलब हमारे पाम पर है लिटरली, चलते फिरते हम खाने पकाने की वीडियोस हो गई, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हो गई, क्राफ्ट्स की वीडियोस हो गई, खाने पीने की, आई मीन यू नेम इट एंड यूट्यूब हैज इट। ये यूट्यूब ना हुआ तो कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो जरूर होगा जहाँ पे आपको बेतहाशा वीडियोस मिलती हैं। वो सारी चीजें लेजर एक्टिविटीज में आती हैं। ठीक है, हैंगिंग आउट, दोस्तों के साथ बाहर जाना, इवन घर में गैदरिंग्स करना, घरों पे दावतों का होना, ये सारी चीजें भी लेजर एक्टिविटी में आती है। सोशल गैदरिंग्स आपकी, जो किसी भी तरह की शादी ब्याह की तकरीबात हो गई, घर में सालगिरह की तकरीब है, कोई भी पार्टी है, एनीथिंग आपके अभी यूनिवर्सिटी के आपकी पार्टिसिपेंट ने बताया कि आज जो है वो इन लोगों ने पार्टी करनी है, तो पार्टीज भी आ गया इसके अंदर। गेम्स खेलना, किसी भी तरह की इंडोर गेम्स हो गई, आउटडोर गेम्स हो गई, इवन वीडियो गेम्स भी हो गई। बहुत सारे लोगों को वीडियो गेम्स खेलने का शौक होता है, लेजर एक्टिविटीज में आता है। एंड देन सोशल मीडिया नेटवर्किंग, जिसमें आपका फेसबुक का इस्तेमाल, ट्विटर का इस्तेमाल, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल, और जितनी भी सोशल मीडिया की एप्स हैं, स्नैपचैट का इस्तेमाल, टिकटॉक का इस्तेमाल, तो वो सारी चीजें आपकी लेजर एक्टिविटीज में आती है। अब आती है असल गेम, यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अब उसको सही कैसे करना है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है, क्यों जरूरी है टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखना, और अपने दिन को, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना और चंक्स में डिवाइड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या चीज क्या मायने रखती है, क्या चीज कितनी जरूरी है, क्या चीज पहले करनी है, क्या चीज बाद में करनी है, इन सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह ताला अब से लेके टिल 12:55 हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, बात भी करेंगे। और आप लोगों से मैं इट वुड बी ग्रेट कि हम थोड़ी सी पार्टिसिपेशन भी लें। अच्छा, राइज अर्ली, सबसे पहला रूल है कि सुबह जल्दी उठना।
एक किताब है, आप लोग उसका नाम नोट करें, और अगर आप ऑनलाइन ले सकते हैं या इवन अगर आप कोई बुक स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं, रॉबिन शर्मा की किताब है द 5 AM क्लब। ठीक है, मैं इसका नाम आप लोग को बता भी दूंगी, चैट पे इनफैक्ट मैं कोशिश करती हूँ कि लिख भी दूँ द 5 AM क्लब इफ आई एम एबल टू शेयर इट ऑन द चैट। ठीक है, इस किताब में जो है वो राइटर भी मैं लिख देती हूँ आप लोगों को, रॉबिन शर्मा। ओके, सो बेसिकली इस किताब का जो मकसद है और इस किताब में जो राइटर ने सारी कहानी बयान की है वो ये की है कि सुबह 5 बजे उठने वाले जो लोग हैं उनकी जिंदगी कैसी होती है। ठीक है, वो कितने कामयाब हैं, कितने प्रोडक्टिव हैं, उन्होंने जिंदगी में क्या क्या चीजें हासिल कर ली हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, जरूर जो है वो आप इसको पढ़िएगा और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सनल तजुर्बा और जितने लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, काम करते हैं, जल्दी उठने से आपके पास दिन में काम करने के जो घंटे हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में, मैं इस वक्त जो है वो अमेरिका में मौजूद हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और पाकिस्तान में भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था डे लाइट सेविंग का। डे लाइट सेविंग से मुराद ये है कि आप अपनी घड़ियों का 1 घंटा आगे कर देते हैं और उसके बाद कुछ महीनों के बाद आप उसको 1 घंटा पीछे कर देते हैं, यानी कि वापस ओरिजिनल टाइम पर ले आते हैं। उसका मकसद ये होता है कि दिन की रोशनी को मैक्सिमम तौर पे यूटिलाइज किया जा सके ताकि आप बेहतर तरीके से काम कर सकें, आप प्रोडक्टिव हो सकें और आप बेहतर अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए और अपने लिए क्रिएट कर सकें। राइजिंग अर्ली क्रिएट्स मोर आवर्स। जल्दी उठेंगे, आपको काम करने का, बेहतर चीजें करने का, अपने आप को वक्त देने का और औरों को वक्त देने का ज्यादा मौका मिलेगा। देर से उठने में आपका दिन आधे से ज्यादा जाया हो जाता है और उसके बाद रात हालांकि आराम की होती है मगर हम जो है वो उसको फिर काम के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिर सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं एंड देन दैट्स हाउ हमारी जिंदगी का जो पूरे का पूरा जायचा है वो काफी हद तक खराब हो जाता है। ठीक है, राइजिंग अर्ली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रूल, डिवाइडिंग योर डे। सेकंड रूल, अच्छा अब जितनी बातें हमने की या अभी तक जो है वो हमने कैटेगरीज बनाई ना लोगों की, चीजों की, कि किन किन चीजों को वक्त दिया जाएगा और जरूरी है, क्यों जरूरी है वो मैं साथ साथ आप लोगों को बताऊंगी। अपने दिन को डिवाइड करना है। सुबह उठे, सुबह उठ के आपने जो भी किया, आपने मेडिटेट किया, नमाज पढ़ी, प्रेयर किया, यूनिवर्सिटी के लिए आपने तैयार होना शुरू किया, आप यूनिवर्सिटी गए, उसके बाद यूनिवर्सिटी के बाद का टाइम आपने कुछ सर्टेन घंटे डिवाइड कर लेने हैं एक टास्क के लिए, उसके बाद कुछ सर्टेन घंटे आपने डिवाइड कर लेने हैं एक टास्क के लिए। डिवाइड करने से क्या होगा, दिन में 24 घंटे हैं ना। ठीक है, अब 24 को आप किस किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? सिंपल मैथ्स का रूल, या तो आप 4 आवर्स के हिसाब से करो, तो 4 6 24, यानी कि दिन के 6 हिस्से आपने बना लिए, ये भी हो सकता है। अगर आप दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हो, क्योंकि एक जनरल रूल ऑफ थंब होता है, तो 3 8 24। ठीक है, यानी कि आपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इसके अलावा अगर आप दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हो, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज आल्सो 24। ये आपके ऊपर है कि आपने अपने दिन को किस हिस्से में डिवाइड करना है। छुट्टी का दिन है, आप उसको अलग तरह से डिवाइड करेंगे। अगर आपका काम करने का दिन है, यूनिवर्सिटी का दिन है, आप उसको अलग तरह से डिवाइड करेंगे। मकसद क्या है इसका? मकसद ये होता है कि आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है अपने दिन को डिवाइड करके कि आपने दिन के कौन से हिस्से में क्या काम करना है। जो ये टू डू लिस्ट बनाने वाली मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी, मुझे नहीं अंदाजा कि आप लोगों ने पहले कभी की हो या आप करते हो। उसकी वजह ये है कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप कोई भी लिस्ट बनाते हैं तो ये भी जरूरी है कि आप उसके आगे ये जरूर लिखें कि आपने उसको कितने वक्त में खत्म करना है। जैसे जो हमारे पार्टिसिपेंट थी, उन्होंने बताया कि जी उनको रात को कपड़े धोने हैं। अब रात को कपड़े धोने के लिए उनके जहन में जरूर होगा कि मैंने इतनी देर में मैं कपड़े धो लूंगी, उसके बाद जो है वो मैंने कुछ नहीं करना है, मैं बस सो जाऊंगी। ठीक है, तो हम कोई भी टास्क जब अपने जहन में बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए टाइम अपने आप ही डिवाइड कर लेते हैं। बाज औकात ऐसा होता है कि कोई चीज बस चल रही है, जैसे लेजर एक्टिविटी में होता है हमारे साथ, वो ड्रामा चल रहा है रिपीट पे, आपकी किस्तों पे किस्तें। बहुत सारे लोग लाइव ड्रामा नहीं देखते हफ्ते के हफ्ते, बल्कि जब खत्म हो जाता है तो इकट्ठे देख रहे होते हैं। वो एक किस्त चली, दूसरी किस्त चली, तीसरी किस्त चली, बस चलती गई, वक्त का अंदाजा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने जहन में लेजर के लिए वक्त नहीं बनाया हुआ होता।
मगर ये बहुत जरूरी है कि जो भी टास्क आप करने बैठे हैं उससे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि जी मुझे इस चीज को इतना वक्त देना है। फिर चाहे वो सोना हो, आपको अपने सोने का टाइम भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे दिन में 6 घंटे सोना है, मुझे दिन में 8 घंटे सोना है, न ज्यादा न कम। और जब आप अपने जहन को बार बार एक चीज रिमाइंड कराते रहेंगे वो आपकी आदत बन जाती है। और साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली ये प्रूवन है कि कोई भी चीज या कोई भी आदत डेवलप करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने दरकार होते हैं। ठीक है, ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। बहुत सारे लोगों को 3 महीने से ज्यादा भी चाहिए होता है और बहुत सारे लोगों को 3 महीने से कम भी चाहिए होता है, बट ऑप्टिमम लेवल पे 3 महीना बिल्कुल फर्स्ट क्लास होता है अपनी आदत डेवलप करने के लिए। अच्छा, तीसरी लिस्ट जो टू डू लिस्ट है, मेरी फेवरेट चीज है टू डू लिस्ट। मैंने टू डू लिस्ट उस वक्त बनाना शुरू की जब मैं यूनिवर्सिटी में आई थी। इनफैक्ट मजे की बात ये है, यूनिवर्सिटी में आके हम लोग भी इस तरह की वर्कशॉप्स और सेमिनार्स हमारी यूनिवर्सिटी में होते थे, तो उसमें हमें जो है वो सेशन में बताया जाता था और बहुत मजे मजे के हमारे टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स आते थे। तो टू डू लिस्ट की भी एक्सरसाइज होती थी। पहले कुछ पता नहीं था कि टू डू लिस्ट क्या होती है, बट जब बनाना शुरू की तो वो सो इजी कि बस भाई आपने कोई भी पर्चा उठाया, कलम उठा लिया, पेंसिल उठा ली, पेन उठा ली और आपने लिख लिया भाई मुझे फला 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 काम करना है। ठीक है। अच्छा, टू डू लिस्ट बनाने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है कि आपके पास कोई ना कोई कागज कलम हैंडी होना बहुत जरूरी है। आपके बैग में, आपके बस्ते में, कोट में, कहीं पे भी एक पेन और पेपर आप अपने पास जरूर रखें। कोई भी काम याद आया ना, आपने उसको नोट कर लिया। अगर पेन पेपर की आदत नहीं है तो मोबाइल में एप्स है। जैसे टू डू लिस्ट मैं बनाती हूँ गूगल के, एंड्रॉइड फोन्स के जो यूजर्स हैं, गूगल कीप, ठीक है, KEEP, या नोट्स, ये एप्स हैं, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड फोन्स में मौजूद होती हैं। उसमें आप जो है वो लिस्ट बड़ी इजीली बना सकते हैं, उसको आप कंपाइल कर सकते हैं और जो जो चीज़ आप करते रहें उसको आप क्रॉस ऑफ कर देते हैं कि जी ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। उससे होता ये है कि एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है। ठीक है, ओ अच्छा यार ये काम मुझे मिला था, चलो ये मैंने कर लिया, शुक्र है खुदा का। ये काम मुझे असाइन किया गया था, चलो शुक्र है खुदा का। और आप जब अपने आप को असाइन करते हैं ना कोई काम, आप पावर में होते हैं, आप अथॉरिटी में होते हैं और आपको खुशी महसूस होती है कि ओके जबरदस्त, चलो मैंने कुछ अचीव किया है और आप अंदर से सेटिस्फाइड होते हैं। किसी और ने आपको टास्क दिया है, टीचर ने कोई टास्क दिया है, अम्मा ने कोई टास्क दिया है, अब्बा ने कोई टास्क दिया है, तो बंदा ऑब्लिगेटेड होता है। ठीक है ना, बंदा पावर में नहीं होता क्योंकि आपने वो काम करके अगले को इन्फॉर्म करना है। तो सेटिस्फैक्टरी वो भी, मगर आप पावर और पोजीशन में उस वक्त नहीं होते। कोई भी चीज याद आई आपने लिख ली। ठीक है, नो मैटर छोटी से छोटी बात हो, बाजार से धनिया पुदीना लेके आना है, ठीक है, आपने लिख लिया। मुझे फलाना मसाला खत्म हो गया है, आपने लिख लिया। ठीक है, इससे कंफ्लिक्ट नहीं होता। जब बाद में सौदे की लिस्ट बनेगी ना, तो मैं अपने पर्सनल मिसालें और घर की मिसालें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल मिसालें देना बहुत जरूरी है। और ये जो टाइम मैनेजमेंट होती है ना, ये जितना ज्यादा घर की प्रैक्टिकल चीजों में हेल्प करती है उतना ही ज्यादा आपको बाहर की दुनिया में भी हेल्प करेगी। घर का कोई मसाला खत्म हो गया, फौरन से नोट कर लिया। ठीक है, मैं पता है क्या करती हूँ, मेरे फ्रिज के ऊपर ना मैग्नेट्स लगे हुए हैं, मैग्नेट्स लगे हुए हैं, उनके साथ पेपर छोटे छोटे से मैंने लगाए हैं। तो जब भी कोई चीज मुझे याद आ रही होती है, अच्छा जी मुझे फलां को कॉल करनी है, ठीक है, मुझे ये फॉलो अप लेना है, या मैंने इस वर्कशॉप की तैयारी करनी है, या मुझे पता है कि जी कल मेहमान आ रहे हैं तो मैंने उनके लिए चावलों की तैयारी करनी है, तो मुझे फला 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 चीजें ग्रोसरी स्टोर से चाहिए होंगी। तो ये सारी चीजें मैं फ्रिज पे लिख के लगा देती हूँ ताकि चलते फिरते मेरी नजर पड़ती रहे कि अच्छा ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। मेरी टू डू लिस्ट भी बनती जाती है और मेरे रिमाइंडर्स भी बनते जाते हैं। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है। मल्टीटास्किंग रोक दें। ठीक है, स्टॉप मल्टीटास्किंग। एक चीज एक वक्त पे फोकस। उसकी वजह यह है कि मल्टीटास्किंग एक, हमें ये लगता है और हमें बताया ये जाता है कि जी बहुत ही जबरदस्त चीज है कि आप अगर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आप बहुत प्रोडक्टिव इंसान हैं, आप जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आपके अंदर स्पेशल एबिलिटी या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मगर मल्टीटास्किंग से आपका कोई भी काम वक्त पे नहीं हो सकता, आपका कोई भी काम फोकस नहीं होगा और आपका कोई भी काम एक्सेप्शनली बहुत अच्छा नहीं हो सकता जितना कि आप करना चाहते हैं। एक चीज को एक वक्त में फोकस करके करें। असाइनमेंट कर रहे हैं, फोकस करके असाइनमेंट करें। अगर कोई और चीज कर रहे हैं तो वो आप फोकस करके करें। उससे आपको भी फायदा होगा और एक एक आपके जो टास्क हैं वो भी बहुत बेहतर तरीके से आप पूरे कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग अवॉइड करें। डेडलाइंस,
अपने लिए ज़ाती तौर पे डेडलाइंस आप सेट करें। ये काम मुझे करना है, ठीक है, मुझे 2 दिन में इसको खत्म करना होगा। अगर मुझे, जैसे कि मैंने बताया ना कि टाइम की डेडलाइंस, डेट्स की डेडलाइंस, कि अगर इतने घंटे हैं मेरे पास ये काम करने के लिए, जरूरी नहीं कि मैं उसको आखिरी घंटे तक खींचूं, मैं उसको पहले भी तो खत्म कर सकती हूँ ना, अगर थोड़ा सा मैं रगड़ा लगाऊं, थोड़ी सी मैं ज्यादा एफर्ट लगाऊं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने लिए आप जो है वो डेडलाइन सेट करें। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, प्रायोरिटाइज करें। ठीक है, हम बहुत सारे काम टालते हैं, बहुत सारे काम हमें लगता है कि अर्जेंट नहीं है तो इम्पोर्टेंट भी नहीं होगा, है ना, ऐसा ही होता है ना। अर्जेंसी और इम्पोर्टेंट किसी चीज का होना, इम्पोर्टेंसी इज नॉट अ वर्ड। तो अब भाई कल कोई सबमिशन है मेरी, ठीक है, वो अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है, दोनों है, ठीक है, मगर कोई ऐसी चीज जो कि जरूरी है मगर अर्जेंट नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको टालना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, कर लेंगे, खैर है, कोई मसला नहीं, कोई मसला, हो जाएगा। और जब सर पे पड़ती है, जल्दी निपटा के और आप उसको सबमिट करा देते हैं। फायदा क्या होता है, ना किसी को फायदा होता है, नुकसान भी नहीं होता, मगर बस बेदिली से आपने वो चीज सबमिट की हुई होती है। तो इन चीजों का खास तौर पे आप ख्याल रखें कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आपके लिए अर्जेंट है, और इन दोनों में फर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट योर टास्क, लिखें। हम कहते हैं जी मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मेरा जहन बहुत अच्छा है, मुझे सब याद रहता है, मैं नहीं भूलती, मगर हम अक्सर भूल जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई भी वाकया ऐसा हो सकता है, तो हमारी याददाश्त जो है वो इतनी अच्छी, जितना हम टेक्नोलॉजी का आजकल इस्तेमाल करते हैं, फोन्स वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें तो बहुत मुश्किल है कि आपका जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी आपकी याददाश्त हो और आपने जो है वो सब कुछ जहन में रखा हुआ हो। इट्स इम्पोर्टेंट कि आप लिख लिया करें, बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा आगे है मार्क इम्पोर्टेंट डेट्स इन योर कैलेंडर। अब आज मेरी वर्कशॉप थी, मैंने कैलेंडर में उसको मार्क कर लिया। सिमिलरली भाई बर्थडेज आ रहे होते हैं, एनिवर्सरीज आ रही होती हैं, इसके अलावा कोई ना कोई इम्पोर्टेंट जो है वो तारीखें होती हैं, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, मैं भूल ना जाऊं तो मैं उसको कैलेंडर में मार्क कर लूंगी। ठीक है, हमारे घर में एक वो जो कागज वाला कैलेंडर आता है, बड़ी खूबसूरत सिनिक तस्वीरें होती हैं। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, मैं कराची से हूँ दरअसल, तो कराची में जितने भी कैलेंडर मिलते हैं उसमें कराची की कभी भी तस्वीर नहीं होती है, उसमें सारी मुख्तलिफ शहरों के पाकिस्तान की तस्वीर होती है। ज़ियारत की एक तस्वीर लाजमी तौर पे होती है, वो कायद आज़म का जो घर है ना वहाँ की, क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो बात करते करते मुझे ख्याल आया, तो वो सिनिक ब्यूटी वाली तस्वीरें होती हैं। ठीक है, कैलेंडर होता है, कैलेंडर में मार्क कर लिया, अच्छा जी दायरा बना लिया, फलां डेट को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, फलां डेट को जो है वो मैंने इधर जाना है, फलां डेट को मुझे बाल कटाना है, कोई भी चीज, कोई भी टास्क हो गए, हमने कैलेंडर में उसको मार्क कर लिया। इससे भी आप अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फोन के कैलेंडर्स का इस्तेमाल करें, फोन के कैलेंडर्स इतनी बेहतरीन चीज है, आपको नहीं अंदाजा कि कितना ज्यादा आपको हेल्प आउट कर रहा है। कहीं जाना है, कोई सफर पे निकलना है, कहीं पहुंचना है, किसी की इयादत करनी है, एनीथिंग, एनी ऑफ द टास्क, जब आप कैलेंडर में मार्क कर लेते हैं तो आपको रिमाइंडर आ जाएगा। फोन में अगर आपने सेट किया हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली आपको 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले रिमाइंडर्स आना शुरू हो जाएंगे। ऑर्गेनाइज योर स्टफ, अपनी चीजों को सही करें। ठीक है, जब बिखरा हुआ होता है ना सब कुछ, चाहे वो घर हो, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो नोट्स हो, कोई भी चीज हो, तो आपको नहीं समझ आ रहा होता कि आप कहाँ से काम शुरू करें। जब चीजें हम ऑर्गेनाइज करने लगते हैं ना, बेसिक सी बहुत छोटी सी मैं एग्जांपल देती हूँ। भाई मेरे घर की ड्रॉर है, ठीक है, दराज है, उसमें मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। अब मेरे पास वक्त नहीं है भाई कि मैं उसको जो है वो रोजाना बैठ के सेट करूं। मुझे जो समझ आया मैंने उठा के पहन लिया, मैं चली गई। ठीक है, काम से वापस आई, अच्छा भाई थकी हुई हूँ मैं, और ये काम टालते 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 कहाँ कहाँ पे मैं इसको लिंक करूंगी कि इज इट अर्जेंट और इज इट इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट अर्जेंट, इट्स काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, ठीक है भाई हो जाएगा ना, ठीक है वीकेंड पे देखेंगे। वीकेंड पे कुछ और चीज आ गई, मैंने छोड़ दी। अब उससे होता यह है कि वो जब पाइल बन जाता है ना इतने सारे कपड़ों का, और देख के फिर वहशत होने लगती है, अब मैं इसका क्या करूं। तो उस पे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। आप नहीं चाहते कि आपके किसी काम के टालने की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़े। आप क्या करें कि आप दिन का एक छोटा सा हिस्सा घर की किसी न किसी चीज को, घर की एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ऑर्गेनाइज करें। अगर कोई बिखरे हुए कपड़े पड़े हुए हैं, वो उठा के साइड पे आपने कर दिए या तय कर दिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि जी भाई पौधों को पानी नहीं दिया गया,
कुछ सेटिंग खराब हो गई है या पत्ते सड़ रहे हैं, ठीक है, मैंने उनको चेक नहीं किया है, मैंने उनकी थोड़ी सी सेटिंग कर दी। कहीं कोई सफाई धूल मिट्टी वगैरह मुझे नजर आ रही है तो मैंने उसको थोड़ा सा झाड़ दिया और उसको ठीक कर लिया। इससे क्या होगा, जब आपकी नजर पड़ेगी ना किसी ऐसी चीज पे जो आपने ऑर्गेनाइज की हो। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, हमारे फाइलें हो गई, हमारे नोट्स हो गए, किताबें हो गई, उनका भी ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। बिखरा हुआ होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अच्छा जी मैं कहाँ से क्या उठा के पढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फाइल मुझे मिल नहीं रही है, कंप्यूटर पे मैं जाके देख रही हूँ, खोल रही हूँ, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई होगी। मोबाइल में अक्सर या वो तस्वीर पता नहीं किस जमाने में मैंने जो है वो ली थी, अब तो मुझे मिल नहीं रही है, मुझे वो चाहिए, किसी को मुझे भेजनी है या व्हाट्सएप, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा। तो हर चीज को ऑर्गेनाइज आप कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज करने के टूल्स होते हैं मोबाइल में, फोल्डर्स आप बना सकते हैं। एंड्रॉइड का अपना तरीका होता है, आईफोन का अपना तरीका होता है। सिमिलरली कंप्यूटर में आप फोल्डर्स बना के आप अपनी फाइल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। घर में आपके कैबिनेट्स हैं, स्टोरेज है, उसमें आप चीजें तरीके से रख सकते हैं और फिर आपको किसी को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी होगी कि मेरी फलां चीज कहाँ है और फलां चीज कहाँ है। तो अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करना सीखें, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपका टाइम बच सके, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। और किस चीज के लिए बचाना है? अच्छी चीजों के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए बचाना है, जो कि हम मुस्तकिल टाल रहे होते हैं। रिकंसिडर योर सोशल मीडिया एक्टिविटी। बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत 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 ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, ये एप्स मैं आपको बताऊं बनाई किस तरह से गई हैं। इनके जो पीछे बनाने की साइंस है वो इस तरह है कि फोन आपके हाथ में है और अगर आपने गौर किया हो तो मुस्तकिल आपका अंगूठा जो है वो चली जा रहा होता है, चली जा रहा होता है, और चीजें नई नई आ रही होती हैं। वो टाइमलाइन रुकती नहीं है, ऐसा लगता है कि बस इन्फिनिटी है, आगे ये कभी खत्म ही नहीं होगा, और हम मुस्तकिल वो काम करे जा रहे होते हैं। कभी आपने नोट किया है कि आप कितना टाइम आपका फोन को देते हैं? ठीक है, जस्ट गिव इट अ थॉट, थोड़ा सा सोचो इस चीज को कि हाँ, ओ माय गॉड, मैं तो अपने फोन में तकरीबन दिन में 3-3.5 घंटे जो है वो बिजी रहती हूँ। मुझे तो अब समझ ही नहीं आती कि कहाँ गया मेरा टाइम। कॉमन स्टेटमेंट है ना, मेरा टाइम किधर चला गया? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम दौड़ रहा है, बस मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त उतना ही होता है, 24 घंटे हम सबके पास होते हैं, उसको इस्तेमाल करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। सो सोशल मीडिया की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए भी एप्स होती हैं, ठीक है, जिनके जरिए आप ये देख सकते हैं कि आपने कितना टाइम आपका सोशल मीडिया पे गुजारा है, फेसबुक पे गुजारा है, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कोई भी सोशल मीडिया की ऐप पे। और दिन के एंड पे आपको पता चलेगा, और जब आप देखेंगे वो भी सारी में एप्स जो आप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हैं। मैं वो फोल्डर एंड में जो शेयर करूंगी उसमें होगा, तो उससे आपको आइडिया होगा कि ओ, इतना सारा वक्त जो है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे वीडियोस और टिकटॉक पे और यूट्यूब पे वीडियोस देखने में जो है वो जाया कर दिया या इस्तेमाल कर लिया। तो उससे फिर आप अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे और फिर आप कोशिश करेंगे कि अच्छा ठीक है, रात को सोते वक्त हम अक्सर अपना फोन अपने साथ ले जाते हैं, नींद आ भी रही होती है, नहीं भी आ रही होती है, मगर हम अपने फोन पे कुछ वक्त गुजारते हैं और उसके बाद हम सोते हैं। बड़ी गंदी आदत हमारी डेवलप हो गई है, इसके बहुत सारे हेल्थ के पर्सपेक्टिव से नुकसान आते हैं। सो प्लीज 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 उसको अवॉइड किया करें, किसी ऐसी जगह रखा करें, चार्ज पे लगा दे, दूसरे कमरे में रख दें, ताकि आपकी नींद बहुत पुरसुकून हो सके। इसके अलावा खबरें पढ़ना कम कर दें या छोड़ दें, ठीक है। हमने आजकल चूंकि न्यूज चैनल्स बहुत सारे हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर आ रही होती है, वो चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, ठीक है, मैं इसलिए क्यों क्यों कह रही हूँ, अनलेस अगर आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है, अच्छी बात है, इंसान को दुनिया के बारे में पता होना चाहिए, अच्छी बात है, इंसान को अपने आसपास के बारे में, अपने मुल्क के बारे में खबर होनी चाहिए। मगर आप ये सोचें कि जितनी खबरें आप देखते हैं, जितनी खबरें आपके पास मोबाइल पे आ रही हैं, उनमें से किसी भी खबर के ऊपर क्या आपका कोई इख्तियार है? क्या आप उसमें से किसी चीज को ठीक कर सकते हैं? क्या उसमें से कोई चीज रेलेवेंट है आपकी अपनी जात के साथ? इफ यस, फैंटास्टिक, आप और रिसर्च करें, आप मजीद उसके अंदर जाएं, आप उसके ऊपर लोगों से राय लें, मशवरा लें, डिस्कशंस करें। मगर
अगर उसकी कोई अहमियत नहीं है, अगर वो सिर्फ एक खबर है जो कि चल रही है और चलते फिरते आपने सुनी है, अगर कोई दुख की खबर है आपने अफसोस कर लिया, खुशी की खबर है भाई आपने खुशी का इजहार कर लिया, दैट्स इट, तो उसका पढ़ना बेकार है, उसके ऊपर वक्त जाया करना बेकार है, उसके बारे में मजीद रिसर्च करना बेकार है, अनलेस इट्स रेलेवेंट टू यू और आपके किसी काम आ सकती है, बहुत अच्छी बात है। टेक ब्रेक्स। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम पूरी रात लगा के कोई एक काम करेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, डजंट हैपन दैट वे। हम समझते हैं कि जी अगर हम सुबह 6 बजे से काम शुरू करेंगे, हम शाम 6 बजे तक बस काम ही काम करते रहेंगे, कोई ब्रेक नहीं लेंगे और बहुत जबरदस्त काम होगा, डजंट हैपन। ये बहुत जरूरी है कि हर आधे घंटे के बाद या हर 45 मिनट के बाद आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। उसकी वजह ये होती है कि ब्रेक लेने से आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है, ये बात नोट करें, इस बात को जहन में बिठा लें। बगैर ब्रेक के काम करने से आप अपने आप को, आपके सर में भी दर्द होगा, आपकी आंखों में भी तकलीफ होगी, आपकी भूख और प्यास भी कम हो जाती है, मिट जाती है। प्रैक्टिकल बात मैं कर रही हूँ, आपने भी इसको एक्सपीरियंस किया होगा। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है जब हम मुस्तकिल उसको काम करा देते हैं। माइंड को भी रेस्ट चाहिए होता है, माइंड काम करते करते थक जाता है, वो थक जाएगा तो उसको 5 से 10 मिनट का रेस्ट लाजमी चाहिए होता है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी को बताएं कि जी मैंने ब्रेक ले लेके काम किया है, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो अपने आप को गिल्टी महसूस नहीं करवाना है आपने। तो टेकिंग ब्रेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि हम जो है वो काफी हद तक इन चीजों के बारे में क्लियर हैं, और एक अंडरस्टैंडिंग, हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग कि हम अपने टाइम को किस तरह बेहतर मैनेज कर सकते हैं, उनकी ये सारी टूल्स और टेक्निक्स जो है वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं नोट्स के साथ जो है वो नोट डाउन कर ली होंगी। टाइम फॉर अनदर एक्सरसाइज। अब आपको एक पर्सपेक्टिव मिल गया, ठीक है, अब आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा होपफुली चेंज हो गया होगा टाइम के हवाले से, कि टाइम किसके लिए है, अपने लिए है। और ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं, टाइम किस किस के लिए है। टाइम है अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, जिसमें हमारी सेल्फ ग्रूमिंग है, जिसमें हमारा अपना ज़ाती ख्याल है, खाना पीना है, ठीक है। इसके अलावा टाइम दूसरों के लिए है, जिसमें फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, सोसाइटी है, नेबर्स हैं, ठीक है। टाइम काम के लिए है, जिसमें हमारी पढ़ाई शामिल है, हमारे क्विजेस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, कोई जॉब कर रहे हैं तो वो शामिल है। और टाइम लेजर एक्टिविटी के लिए है। लेजर एक्टिविटी का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, जो कि यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करना, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, और इसके अलावा आपने गेम्स खेलना है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी दैट इज फॉर फन, फॉर द सेक ऑफ फन। ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ टूल्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए हैं। अब एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज है? वही जिससे आपने स्टार्ट किया था। अब इस पर्सपेक्टिव से आप सोचें कि अब मेरे दिन को आप अपने डिवाइड करें, ठीक है, यू डिवाइड योर डे। किस तरह से हमने कहा था कि हम डिवीजन कर सकते हैं? आप बेशक उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें, आप बेशक उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें, आप बेशक उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें। 8 8 8 8 8 8 8 आवर्स 3 मरतबा, 12 12 आवर्स 2 मरतबा, 6 6 6 6 आवर्स 4 टाइम्स। और मे बी अगर आप उसको फर्दर चंक डाउन करना चाहें तो 4 4 4 4 4 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 24। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने दिन को किसी भी इस तरह के चार्ट में आप डिवाइड करें। अब टू डू लिस्ट बनाएं आप अपने कल के काम की, आज के काम की नहीं, आपके कल के काम की। कल का दिन होगा हफ्ते का, हफ्ते को सुबह से लेकर रात तक क्या क्या चीजें होंगी, और किस तरह से डिवीजन करके, दिन को डिवाइड करके अपनी मर्जी से, कि आप जितने हिस्सों में उसको डिवाइड करना चाहते हैं वो करें। फिर एक टू डू लिस्ट बनाइए। इसके लिए आप आराम सुकून से 5 मिनट का टाइम लें, और उसके बाद फिर जब आप कर लेंगे तो मुझे इन्फॉर्म कर दें, एंड कोई भी एक वॉलंटियर आके अपने जो है वो मेरे साथ एक्सरसाइज शेयर कर ले, ठीक है। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
मैंने चैट पे भी लिख दिया है। जब एक्सरसाइज हो जाए काइंडली मुझे चैट पे, ग्रुप चैट पे अपडेट कर दें। Okay, are we done? कोई एक पार्टिसिपेंट प्लीज अगर आके शेयर कर दें अपनी टू डू लिस्ट। उन्होंने किस, सबसे पहले बताएं कि उन्होंने कितने हिस्सों में दिन को डिवाइड किया और उसके बाद अपनी टू डू लिस्ट कल के लिए।
मुझे प्लीज कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई रिस्पॉन्स कहीं से अगर मिल जाए तो आई वुड नो। सहर, अगर आप सुन रही हो तो काइंडली अगर आप कम्युनिकेट कर सकें। Let me just ask the facilitator about it. यस प्लीज, थैंक यू। No worries. किसी ने कर लिया है तो वो आके शेयर कर सकता है। हाँ जशन बस जो कर देख सकते के साथ। हाँ यही खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें सबसे पहले ब्रेकफास्ट होगा और उसके बाद इंशाल्लाह हाउस वर्किंग होगी, घर का काम। एंड देन मॉर्निंग का है, इसको डिवाइड किया है। फिर जो आफ्टरनून है उसमें हम लंच और असाइनमेंट वर्क्स मिली है उस पर काम करूँगी इंशाल्लाह। और जो इंशाल्लाह। इवनिंग का काम है उसमें लेजर एक्टिविटीज होंगी और उसमें फ्रेंड्स गैदरिंग होगा व्हाट्सएप पे एंड यूट्यूब पे और अदर एक्टिविटीज है। और मैम उसमें फिर इवनिंग को डिनर और फिर गैदरिंग होगा फैमिली वालों के साथ। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह, चलो फैंटास्टिक। आई वुड लाइक टू अपलॉज। अच्छा, मुझे अगर आप बताना चाहो या कोई और बताना चाहे कि जो शुरू की लिस्ट बनाई थी उसमें और अभी जो लिस्ट बनाई उसमें कोई चेंज लगा? शुरू में किस तरह से बना रहे थे आप, क्या आपका दिमाग में थॉट प्रोसेस चल रहा था, और अभी जो बनाई तो क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था? आपने कहा था वो ऑर्गेनाइज नहीं था, मैंने ऐसे ही बनाया उसको। लेकिन जो अभी का लिस्ट है उसको मैंने ऑर्गेनाइज करके बनाया, यानी जो डिवाइड किया अपने दिन को 3 हिस्सों में कि मुझे कौन कौन सी पार्ट में कौन सी काम करना है। पहले मैंने ऐसे ही लिख लिया इसमें। ओके ओके, वेरी नाइस। पहले ऐसे ही रैंडम बस फला 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 चीज करनी है, मगर अभी जो किया उसमें आपने टाइम डिसाइड किया, ऑर्गेनाइज किस तरह करना है, किस चीज को कितना वक्त देना है, ये सारी चीजें माइंड में रखी थी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हमारे पास थैंक यू बच्चे, आप जाके बैठ सकते हो, थैंक यू। अच्छा, हमारे पास 5 मिनट है। अगर किसी के जहन में कोई सवाल है, ठीक है, अभी जितनी भी सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की, आप लोग नजर नहीं आ रहे थे तो मुझे आइडिया नहीं है कि अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन था या किसी ने कोई चीज रेज किया हो तो अगर आप लोग लिखवाना चाहें अपने क्वेश्चंस या कोई आके पूछना चाहे, मोर देन वेलकम। हम 5 मिनट थोड़ा सा करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो कोई सवाल पूछना चाहे तो प्लीज हम इसको Q&A करते हैं, फिर हम कम्युनिकेशन की तरफ जाएंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो आके यहाँ पूछ लें। जी बच्चे आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरी क्वेश्चन ये है कि हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बाद अगर ऐसा होता है कि मैंने अपनी फॉर एग्जांपल रीडिंग के लिए एग्जाम मुख्तस कर दी है, लेकिन उस टाइम मैं लेजी फील कर लेती हूँ और उस टाइम मैं अपने उस टास्क को नहीं कर पा सकती, तो उस टाइम मुझे क्या करना चाहिए? दोबारा से बताओगे क्योंकि आपकी आवाज बहुत हल्की हो रही थी, मैं सवाल समझ नहीं सकी। दोबारा से पूछ लो। मेरी क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना जो टाइम था उसको मैनेज कर दिया, तो बाद वक्त मेरे साथ ऐसा होता है कि एक टाइम में किसी काम के लिए मुख्तस है, लेकिन उस टास्क को मैं उसी टाइम नहीं कर पा सकती,
तो उस टाइम मुझे क्या करना चाहिए? ओके ओके, मैं ये लेजी फील लेजी आप फील कर रहे हो, ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज है। अच्छा, उसमें आप बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है, मैं इसको आंसर कर देती हूँ। सो जो टाइम मैनेजमेंट का बेसिकली स्किल है ना, ये हम हम सब पे, किसी के भी दिन परफेक्ट नहीं होते। बाज़ औक़ात मेरे दिन ऐसे गुजरते हैं कि मैं पूरा दिन इतना लेजी फील कर रही होती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करती, लिटरली मैं कुछ भी नहीं करती, मेरा पूरा दिन जाया हो जाता है और फिर मुझे एहसास होता है कि ये मैंने क्या किया। फिर हम प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को ब्लेम करेंगे, हम ये सोचेंगे कि ओ मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वैसा क्यों किया। इट्स ओके, ठीक है, बाज़ औक़ात लेज़ी फ़ील करना ठीक है, बाज़ औक़ात अगर कोई चीज़ उस टाइम पे नहीं हुई जिस टाइम के लिए मैंने उसको वो टाइम निकाला था, इट्स फाइन। अपने आप को कभी-कभी माफ़ भी कर देना चाहिए, मगर लेसन सीखो उस चीज़ से कि अगर कोई चीज़ वक़्त पे नहीं हुई तो उससे नुकसान क्या हुआ, उससे वक़्त अगर ज़ाया हुआ तो वो वक़्त किस चीज़ में काम आ सकता था, ठीक है? तो देखो, एवरी एवरी मिस्टेक इज़ एन अपॉर्च्युनिटी। ये बात याद रखो, ये बात ज़िंदगी में बहुत काम आती है। कोई भी गलती हम करते हैं ना, वो किसी न किसी मकसद के लिए होती है और किसी न किसी मकसद से हमें काम आ सकती है ज़िंदगी में। इफ यू आर फीलिंग लेज़ी, दैट्स फाइन। अगले टाइम के लिए आपने अगर वो टाइम डेडिकेट किया हुआ है, पूरी कोशिश करें कि आप अपने ज़हन को आमादा करें। मेरा जो वक़्त ज़ाया हुआ था, तो उसकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ, और उस नुकसान का आप रिमाइंडर जब अपने आप को देते रहेंगे, तो फिर आइंदा आप वो काम उस टाइम में करने के लिए लेज़ी महसूस नहीं करेंगे। इट्स फाइन, इट्स फाइन। कभी-कभी इंसान लेज़ी भी हो जाता है, तो उसमें कोई इतना मसला नहीं है। अपने आप पे सख्ती मैं नहीं समझती कि आपको बहुत अच्छा या बहुत प्रोडक्टिव बना सकती है। आई कैन टेक वन मोर क्वेश्चन, फिर हम छोटी-सी एक ब्रेक ले लेते हैं। मैं थोड़ा-सा पानी-शानी पी लेती हूँ, फिर हम कम्युनिकेशन के सेशन की तरफ आते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं ले सकती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन ये है कि मतलब हम ये कहा कि मोबाइल फोन ज्यादा यूज ना करें, तो मतलब टाइम उससे वहां पे हम वेस्ट करते हैं। एक मतलब हमारी बहुत बड़ी मतलब टीचर है, एसएसटी टीचर है और मोटिवेशनल स्पीकर भी है, तो उन्होंने कहा कि मतलब साइकोलॉजी कहती है कि आपकी आंखें और आपका जो ब्रेन है, आपको जितना परमिशन मतलब वो जितना बर्दाश्त कर सकता है, आप लोग उतना मोबाइल फोन यूज कर सकते हो। तो एज ए स्टूडेंट हम अपने मतलब मोबाइल फोन हम यूज ना करें, मतलब हम फेसबुक या व्हाट्सएप, ट्विटर ये हम ज्यादा यूज ना करें। इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या हम ये ऐप्स ठीक है। यूज ना करें, मतलब या तो कुछ ऐसा जिससे हम ये मैनेज कर सके कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। श्योर, श्योर, श्योर। मतलब हम मोबाइल फोन कितना यूज करें और क्या करें कि हम ज्यादा यूज करने से मतलब अवॉइड करें कि हम ज्यादा यूज ना करें। ओके, ओके। आप बैठो, मैं इसका आंसर देती हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी, माँओं के लिए भी, घर में रहने वाले बहन-भाइयों के लिए, शौहरों के लिए, बीवियों के लिए, सब इस चीज़ से तंग होते हैं कि हम अपना काफ़ी सारा टाइम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गुज़ार देते हैं। अच्छा, अब देखिए फ़र्क है। हाँ, यहाँ हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। मैं जो तारकशी जिसका मैंने नाम लिया था, मेरा एक छोटा-सा बिज़नेस है। मेरा सारा बिज़नेस मेरे फ़ोन से होता है। मैं फ़ेसबुक पेज से अपना बिज़नेस चला रही होती हूँ, इंस्टाग्राम से बिज़नेस चला रही होती हूँ। मेरे लिए मेरे फ़ोन पे होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने क्लाइंट से बात भी करनी है। मैंने सामान अगर बनवाना है तो उसके लिए भी मुझे जो है वो वेंडर से बात करनी होगी। मेरी पेमेंट आ रही है, मैंने बैंक अकाउंट अपना मुस्तकिल चेक करते रहना है, तो और इसके लिए मेरा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़रूरी है। मगर मैं उसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह करूँ कि मैं सोशल मीडिया जो है वो उसका इस्तेमाल कम करूँ और मैं अपना काम ज़्यादा करूँ। तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ये कंप्लीटली हर इंसान के लिए अलग-अलग होता है कि उसका मोबाइल फ़ोन से काम क्या है। अगर आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ बात करना है, ताल्लुक़ रखने के लिए है, बातचीत करने के लिए है, दुनिया से एक आपने कनेक्शन बना के रखना है, देन आप अपने मोबाइल को उतने टाइम के लिए इस्तेमाल करें जितने टाइम के लिए आप कोई भी लेजर एक्टिविटी करें या कोई भी लेजर काम कर रहे होते हैं, ठीक है? जो कि मैंने एक जो डिवीजन मैंने बताई थी कि जी हाउ इम्पोर्टेंट इज़ लेजर एक्टिविटी फॉर यू या सेल्फ टाइम फॉर यू। अगर आपका कोई बिज़नेस है या अगर आपको मोबाइल फ़ोन मुस्तकिल इस्तेमाल करना होता है, तो आप जो है वो टाइम उस हिसाब से डिवाइड करते हैं।
जहां तक बात यह है कि जी साइकोलॉजी क्या कहती है और आपकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो टेक्नोलॉजी तो हम कंज्यूम करते चले जाएंगे और हमें नहीं अंदाजा होगा। एक चीज जो रिसर्च ये साबित करती है कि हम, और थोड़ी सी डरावनी रिसर्च है, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं ना, चाहे वो हम गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो हम फेसबुक पे कोई स्टेटस डाल रहे हैं, कोई तस्वीर अपलोड कर रहे हो, टिकटॉक पे, स्नैपचैट पे, कहीं पे भी, हमें ये लगता है कि अगर हमने डिलीट कर दी तो वो वहां से गायब हो चुकी है। जबकि कोई भी चीज जब वो आपकी इंटरनेट स्पेस में चली गई है तो वो डिजिटल फुटप्रिंट के ज़मरे में आती है। यानी कि आपका एक फुटप्रिंट बनाया जाता है जिससे आपकी आदतों के बारे में, जिससे आपके बाइंग बिहेवियर के बारे में, जिससे आपके जो है वो एक्टिविटी के बारे में, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आपको खाने में क्या पसंद है, आप किसके साथ उठते बैठते हैं, आपके दोस्त कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होती है। वो जो एड्स चल रही होती है ना, फेसबुक एड में आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी से बात कर रहे हैं या आपने कोई चीज सर्च की है, कि आपने गूगल पे सर्च होगी, मगर फेसबुक पे उसका ऐड चलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका एक फुटप्रिंट डेवलप होना शुरू हो गया है और आपकी उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आपको चीजें दिखाई जाएंगी, एड चलाए जाएंगे ताकि आप लोगों से चीजें खरीद सकें। तो जब हमें आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी, जब हम पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, हमें अंदाजा होता है कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत हद तक, खतरनाक हद तक हमारे अगेंस्ट भी इस्तेमाल की जा सकती है, और हमारी एक एक इंफॉर्मेशन को मॉनिटर भी किया जाता है और पूरा हमारा डेटाबेस बनाया जा रहा होता है। तो तब हम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही टेक्नोलॉजी से कट ऑफ होते चले जाते हैं। ये मेरे साथ हुआ। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे अंदाजा हुआ कि ये मेरी जो सारी एक्टिविटी मैं पोस्ट कर रही होती हूँ, मैं कहीं रिव्यूज डाल रही हूँ, कहीं पे कुछ अच्छा लगा तो मैंने पिक्चर डाल के पोस्ट कर दिया, तो दिस इज माय डिजिटल फुटप्रिंट, और ये खतरनाक हद तक जो है वो काफी आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि यू आर द बेस्ट जज, अपने आप को जज करना सीखें। और बात मैंने वही कहा ना आपको, अर्जेंसी किस चीज की है, इम्पोर्टेंट क्या चीज है, लेजर क्या है, और वर्क क्या है। जब ये कैटेगरीज, डिपार्टमेंट्स आप डिफाइन कर लेंगे ना, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी कि आपने कितना वक्त जो है वो सोशल मीडिया को, सोशल एक्टिविटी को देना है और कितना वक्त जो है वो अपने काम को देना है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप उठें, बैठें, एक्सरसाइज करें, हल्ला गुल्ला करें, गपशप लगाएं, एंड 5 मिनट के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम कम्युनिकेशन का सेशन स्टार्ट करेंगे। Okay, ma'am. Thank you. थैंक यू। बाहर ना जाए, यहीं पे घूमें।
चलें जी, we are resuming. Inshallah Taala next 30 seconds. Okay. Shall we start? मुझे प्लीज एक्नॉलेजमेंट का मैसेज दे दें. फैसिलिटेटर प्लीज शुरू करें सेशन. बस हमें 2-3 मिनट दे दें मैम. अच्छा जी, ठीक है, प्लीज दे दें. अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान बोल रहा हूँ. आप कैसे हैं?
बात कर सकते हो, आवाज आपकी जा सकती है, तो बताओ। सर वीडियो वीडियो में आवाज तो जा रही है, बोलो वीडियो से रखते हैं। हेलो हेलो कैमरा ऑन है, आप हमें देख सकते हैं? एक सेकेंड। Yes, we can see you. पार्टिसिपेंट्स आपको नजर आ रहे हैं? मुझे नजर आ रहे हैं बिल्कुल, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है Okay, okay. और हाँ वीडियो मैंने अपनी ऑफ की हुई है। ओके ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जी, आप स्टार्ट कीजिए। Okay. अच्छा, तो second part of this training is communication. 1 घंटा, in fact हमारे पास 45 minutes हैं। It's very 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 less क्योंकि communication इतना बड़ा subject है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं, and then with the advancement of technology जहाँ पे हम virtually अब एक दूसरे से बात करने लगे हैं, पर in person हम बात कम करते हैं और फोन्स के जरिए बात ज्यादा कर रहे होते हैं, चैट्स के जरिए बात ज्यादा कर रहे होते हैं, तो उसमें बेतहाशा चीजें इन्वॉल्व हैं। मैं बड़े बड़े एरियाज कवर करूंगी, चंक्स में हम बात करेंगे वंस अगेन, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि किस तरह से कम्युनिकेशन पर्सनल और प्रोफेशनल होती है। ठीक है, 2 बड़े मेन चंक्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद है जो हम बोल के करते हैं, जिसमें बातचीत इन्वॉल्व है, जिसमें आपका फेस टू फेस इन पर्सन जो हम गपशप लगा रहे होते हैं वो इन्वॉल्व है। लैंग्वेज पैटर्न्स, मैंने जो मेरा इंट्रोडक्शन था उसमें हमारी जो फैसिलिटेटर हैं उन्होंने आपको बताया कि मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हूँ, उसका मैंने पूरी एक ट्रेनिंग ली हुई है। इसको आप सर्च कीजिएगा, आप लिख लें NLP, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्रामिंग। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्रामिंग। वैसे मैंने जो कम्युनिकेशन में मेरा काम करने का जो तजुर्बा रहा और जितना मैंने मुख्तलिफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, there was about a lot of stuff जो कि मैं कर रही होती थी और मुझे कॉन्शियसली पता नहीं होता था कि अच्छा ये भी कम्युनिकेशन के ज़िम्रे में आता है। मगर जब मैंने NLP की ट्रेनिंग ली, और मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि इसके बारे में आप पढ़ें, क्योंकि ये मॉडर्न कम्युनिकेशन में आपको चीजें समझने में बहुत हेल्प करेगा। इसने बिल्कुल मेरा पर्सपेक्टिव, मेरी लाइफ का एक जो देखने का जरिया था ना कम्युनिकेशन को, वो बिल्कुल चेंज किया है। अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें मैटर करती हैं? मेरे हिसाब से 4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले है लैंग्वेज पैटर्न। आप किस तरह से अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, आप कौन सी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी जबान इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो अंग्रेजी के सेंटेंस किस तरह बना रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू के सेंटेंस किस तरह बना रहे हैं, आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है आप वो जब बोल रहे हैं तो आप उसका किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करें। इंग्लिश लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं, जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, एंड स्पेशली मेरे ख्याल, मुझे याद है क्लास 8 में या 9 में वो सेंटेंसेस बनाने का हमें एक एक एक्सरसाइज होती थी, उसमें एक्टिव सेंटेंस बनाने होते हैं, पैसिव सेंटेंस बनाने होते थे, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप बनाइए, जिसमें सवालिया सेंटेंसेस आप बनाइए। तो वो महज उस टाइम तो सिर्फ एक्सरसाइज लगती थी, मगर अब मैं जब सोचती हूँ तो उस चीज ने, अगर हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते और ये समझने की कोशिश करते कि मुझे सवालिया सेंटेंस कब बोलना है, मुझे एक्टिव सेंटेंस कब इस्तेमाल करना है, मुझे असर्टिव सेंटेंस कब इस्तेमाल करना है, मैं पैसिव बात कब कर सकती हूँ, तो ये चीज मुझे कम्युनिकेट करने में कोर्स बहुत बेहतर हेल्प करती है। मगर चूंकि उस एक्सरसाइज को हमने सिर्फ एक्सरसाइज के तौर पे किया, इसलिए हम कभी उसको समझ नहीं सके। तो लैंग्वेज के पैटर्न्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रखते हैं जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं।
कॉन्शियसली जब आप बात करते हैं, यानी कि जब आप अपने होशो हवास में कंप्लीटली किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, तो आप किस तरह से बातचीत कर रहे होते हैं। और अगर आप बिल्कुल मेस्मराइज्ड हुए हुए हैं और आप खुमार में हैं, कहीं खोए हुए हैं, अपनी सोचों में घूमे, ख्यालों में कहीं, और फिर किसी से बात कर रहे होते हैं, उसका क्या तरीकेकार होता है, बहुत फर्क होता है। अपने आप को नोट किया करें, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो कम्युनिकेशन का सबसे पहला रूल होता है कि आप ऑब्जर्व करें, दूसरों को भी और अपने आप को भी। जब कोई दूसरा आपसे बात कर रहा हो, आप ये देखें कि उसका बात करने का तरीका क्या है, उसका लैंग्वेज पैटर्न क्या है, वो सवाल ज्यादा पूछता है, या उसे बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने की आदत है, या उसे तमहीद बांधने की आदत है, यानी कि एक्सप्लेनेशन हर चीज की उसको देने की आदत है। इस चीज से आप बहुत सारी बातें अखज़ कर सकते हैं। सो इन वर्बल कम्युनिकेशन लैंग्वेज पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टोन, नाउ व्हाई टोन इज इम्पोर्टेंट। टोन कैसी है अगले की, धीमी है, गुस्से वाली है, बहुत लाउड है, या बहुत सॉफ्ट है। अगर टोन की मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो इट वुड बी समथिंग लाइक के मैं बहुत तेज तेज बात भी कर सकती हूँ, और हो सकता है कि आपको समझ में आया, हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, और हो सकता है कि मैं जो भी बात कर रही हूँ वो आप नोट भी ना कर पा रहे हो, और हो सकता है कि मैं इतना आराम आराम आहिस्ता से बोलूं कि आपको चिढ़ होने लगे और आपको ना समझ आने लगे। यू सी द डिफरेंस। ये मैंने जानबूझ के किया था, ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा डेमो आपको दिया था ये समझने के लिए कि आप फर्क महसूस करें, और अपना ऑब्जर्वेशन जितना आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उसको बनाएं, ताकि आपको इस बात की समझ आने लगे कि अगला किस टोन में बात कर रहा है, ताकि जब कोई गुस्सा करेगा तो आपको समझ आएगी कि अच्छा अगला गुस्सा कर रहा है। जब कोई मोहब्बत का इजहार कर रहा होगा, प्यार से बात कर रहा होगा, तो आपको समझ आएगी कि अच्छा अगला प्यार से बात कर रहा है। सो टोन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जब आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। पिच, हाई या लो, बस पिच के जो है वो 2 स्केल होते हैं, ठीक है, जिसमें आप जो मैंने लाउड वाली बात की ना कि वो बहुत लाउड भी हो सकती है पिच, और आपकी पिच जो है वो कम भी हो सकती है। पहले टाइम पे आई डोंट नो एग्जांपल ये कोट करना रेलेवेंट होगा या नहीं, बट ओके लेट्स फॉरगेट दैट। वो जब म्यूजिक के हवाले से मैं एग्जांपल देना चाह रही थी, बट बहरहाल तो जैसे पिच हम यूज कर रहे होते हैं सिंगिंग में जो है वो पिच का बड़ा कमाल होता है कि जैसे खवातीन की आवाज की अगर पिच की बात की जाए तो कहते हैं कि वो हाई पिच पर ज्यादा गा रही होती हैं, और मर्दों की जो पिच होती है वो थोड़ा सा डीप टोन में, हस्की टोन में गा रहे होते हैं। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स जब सिंगिंग में यूज होती हैं तो पिच का उसमें इस्तेमाल होता है, बट इट हैज एन इम्पैक्ट, एवरीथिंग हैज एन इम्पैक्ट। आपकी आवाज की क्वालिटी का भी इम्पैक्ट होता है, आपके जो है वो क्या कहना चाहिए मिजाज का भी इसमें इम्पैक्ट होता है, आपकी फीलिंग्स का भी इम्पैक्ट है, आपके इमोशंस का भी इम्पैक्ट है। और चौथी चीज वर्ड्स, अल्फाज। एक चीज मैंने पढ़ी और मैं यहाँ पे जरूर कोट करना चाहूंगी कि व्हाट यू से डजंट मैटर मच देन हाउ यू सेड इट। जो आपने कहा वो तो आपने कह दिया, मगर आपने जैसे कहा, जिस तरीके से कहा, वो ज्यादा मैटर करता है। अब आपने अगर अच्छी बात भी कड़वे अंदाज में कही होगी ना, तो वो कड़वाहट के ही तरीके से अगले तक पहुंची होगी, दिन के वो अच्छे मिजाज में पहुंचे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। वो कहते हैं ना बाज़ औक़ात कि जी किसी को मुबारकबाद देनी है मगर अंदर से जो है वो आप खुश नहीं है, आप जेलस हो रहे हैं, आपको हसद फील हो रहा है, तो आप मुबारकबाद तो दे रहे होंगे, मगर एक ह्यूमन नेचर में, क्योंकि हम सारे के सारे इंसान, हमारे अंदर फीलिंग्स और इमोशंस हैं, तो हम समझ जाते हैं कि अगला कब हमसे हसद की टोन में बात कर रहा है, अगला कब हमसे जेन्युइनली खुश होकर बात कर रहा है, ठीक है। हम रिश्तेदारों की एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, राइट, बहुत माजरत के साथ कि जी फलां रिश्तेदार ने तो पूछा भी नहीं और फलां रिश्तेदार ने ये किया। एंड द रीजन व्हाई आई एम कोटिंग दिस एग्जांपल इज कि ये बहुत कॉमन है हमारी तरफ। शादी पे बुलाया भी, अच्छा नहीं बुलाया तो क्यों नहीं बुलाया, ये इशू था, वो इशू था, वगैरह वगैरह। तो जो अल्फाज होते हैं, जिस तरीके से पेश किए जाते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। तो जब भी आप किसी के सामने कोई इमोशन या किसी चीज का इजहार कर रहे हो, किसी जज्बे का इजहार कर रहे हो,
तो ये जरूर देखें कि वो किस तरह से कम्युनिकेट किया जा रहा है, किस टोन में, किस पिच में, उसका पैटर्न क्या है, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारी बातचीत का, हमारे मैसेजेस को पहुंचाने का, राब्तों का जो 80 से 85% हिस्सा है, वो मेरे नजदीक 90% हिस्सा है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए जाता है, जिसमें आपका शामिल है बॉडी लैंग्वेज, दैट्स इट। बॉडी लैंग्वेज में बेतहाशा चीजें आ जाती हैं, यानी कि आई मूवमेंट्स, आपकी आंखों के मूवमेंट से, जो मैं एनएलपी का जिक्र कर रही थी ना, हमारी ट्रेनिंग में हमें ये बताया गया कि अगर आपकी आंखें ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं उसका भी एक मीनिंग है, अगर वो नीचे की तरफ मूव कर रही हैं उसका एक मीनिंग है, साइडवेज मूव कर रही हैं तो उसका एक मीनिंग। तो जब सिर्फ और सिर्फ आंखों के ऊपर और आंखों के कम्युनिकेशन के ऊपर आपके किताबों की किताबें सारी लिखी हुई हैं, तो आप ये सोचें कि आपके जिस्म के बाकी तमाम हिस्से किस तरह से किसी और के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसमें मैं एक बहुत मजे की आप लोगों को एक्सरसाइज बताती हूँ, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। इसको हम कहते हैं रेपो बिल्डिंग, ये आप लिख लें, RAPPORT, रेपो। इसमें होता ये है कि अगर आपने किसी के साथ कम्युनिकेशन डेवलप करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि अगला आपकी बात सुने और आप वो एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर लें, तो जो भी बंदा आपके सामने बैठा हुआ है ना, आप देखें कि वो किस पोज में बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, व्हाटएवर। अगर जैसे उसने अपने गाल पे हाथ रखा हुआ है, आप भी अपने गाल पे हाथ रख लें। अगर उसने टांगे अपनी दोनों क्रॉस की हुई हैं, तो आप भी अपनी टांगे जो है वो क्रॉस कर लें। इसे कहते हैं मिररिंग, यानी कि अगला जो भी बॉडी लैंग्वेज अपनी पेश कर रहा है जिस भी तरीके से, आप भी उसी तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज बनाएं। कहने को ये मजाक बात लगी है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा हो नहीं पाएगा, ये बहुत मुश्किल काम है। आप नेक्स्ट टाइम ऑब्जर्व कीजिएगा, जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में महव होते हैं ना, बिल्कुल आपको पता भी नहीं होता और आप बात किए जा रहे होते हैं, इधर उधर हो जाए दुनिया, यहाँ की वहां, कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ भी हो, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी, टांगे, आपकी आंखें, आपकी गर्दन, हर उस तरह से मूव करना शुरू कर देती है जैसा कि आप अगले बंदे से बात करें। दिस इज कॉल्ड रेपो बिल्डिंग। इसका ऑपोजिट होता है रेपो का ब्रेक करना, यानी कि आपको कम्युनिकेशन तोड़ना है, आपको नहीं समझ आ रही अगले की, कोई बहुत बातूनी है, कोई बहुत ज्यादा जो है वो नॉर्मल टर्म्स में हम कहते हैं कि जी इसने हमारा सर खा लिया है। तो रेपो किस तरह आप ब्रेक करेंगे कि आप जो जेस्चर अगला कर रहा है आप उसके ऑपोजिट जेस्चर्स करेंगे, ठीक है। अगर उसने क्रॉस लेग किया हुआ है, आप नॉर्मल लेग्स जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी ने गाल पे हाथ रखा हुआ है, आप कोशिश करेंगे कि आप उसकी तरह ना करें, बल्कि यू डू द ऑपोजिट ऑफ दैट। एंड इससे होगा ये कि अगले को फील हो जाता है। ये गेम सारा फीलिंग्स का है, जो बॉडी लैंग्वेज का जितना भी गेम है वो ऑब्जर्वेशन और फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगले को इंस्टेंटली ये फील हो जाएगा कि यार ये बंदा मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, और वो अपनी बात खत्म करके चला जाएगा। ये टेक्निक्स हैं, इसमें बहुत 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 सारी टेक्निक्स आती है, बट जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से आप किसी के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, किस तरह से तोड़ सकते हैं। हैंड जेस्चर्स बहुत कुछ कह जाते हैं। एक बहुत मजे की मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। हमारे घर में एक बुजुर्ग थी, मैं उनके साथ बैठी हुई थी, तो हुआ ये कि उन्होंने ना, वो डाइनिंग टेबल पे मैं उनके साथ खाना खा रही थी, तो उन्होंने अपनी फिंगर जो है ना वो कुछ चलाना शुरू कर दी, ऐसे वो टेबल पे बैठी हुई थी, एंड देन शी वेंट लाइक जो शहादत वाली उंगली होती है ना, वो ऊपर नीचे वो कर रही थी। अच्छा, मैंने उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अब मेरे जहन में एक बात चल रही थी, मैंने कहा यार हो सकता है कि ये बात ये अभी कहें, एंड बिलीव यू मी उसी वक्त उन्होंने वही बात की, और मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे पता होगा कि ये क्या बात कर रही है। अच्छा, फिर मैंने उनको 2-3 दफा और ऑब्जर्व किया, तो जब भी वो एक अपनी फिंगर को कुछ इस तरह से मूवमेंट करती थी ना, उनके जहन में कोई सवाल होता था, एंड एवरी टाइम शी मूव्ड हर फिंगर, वो कोई ना कोई सवाल मुझसे पूछती थी। तो फिर मुझे समझ आया कि हाथों के जेस्चर से भी आप अगले को बहुत कुछ समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हाथों के जेस्चर लोगों के देखें, उसको पढ़ें, उसको समझें, तो यू कैन गेज अ लॉट ऑफ स्टफ आउट ऑफ इट। बॉडी टेम्परेचर, लोगों का ब्लड प्रेशर बाज औकात जो है वो किसी से बात करते कहते हैं ना हाई हो गया, मेरा तो बीपी हाई कर देता है ये बंदा।
बॉडी टेम्परेचर आप किसी का जो है वो बढ़ जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप जोश में होते हैं, आप एंथुसियास्टिक होते हैं किसी चीज़ के हवाले से, फ्लक्चुएट करने लगता है बाज़ औक़ात, बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। होता है ना कि स्टेज पे मुझे स्पीच जाके देनी है या मुझे सवाल करना है किसी से, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आई एम शिवरिंग, मैं कांप रहा हूँ। उससे आप नतीजा ये अखज़ कर सकते हैं कि जी अगले को तो कॉन्फिडेंस का इतना ज़्यादा मसला है, एंड देन ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज कह रही होती है कि यू लैक कॉन्फिडेंस, या आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि आप इतने सारे लोगों के सामने बात कर सकें। वाइब्स एंड एनर्जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसी चीज है जिसको हम अक्सर निगेट कर देते हैं और हमें लगता है कि नहीं 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 नहीं, ये हमारा वहम होगा, जबकि हमारी जो गट फीलिंग होती है, जिसे हम कभी कभी सिक्स सेंस भी कह देते हैं, जो कि छठी हिस्स है और वो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में इंडिकेट कर रही है, उसको उस पर ट्रस्ट करना सीखें। मोस्ट ऑफ हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते और वही करते हैं जो रैशनली हमारा दिमाग करने को कह रहा होता है। वाइब्स और एनर्जी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। कहते हैं ना कि किसी को देख के लगता है ना कि क्या पर्सनैलिटी है, वो जबरदस्त। किसी को देख के लगता है नहीं यार मजा ही नहीं है, इनसे तो बात करने का भी दिल नहीं चाह रहा है। क्या हमें वाइब्स आ रही होती है, हमें एनर्जी उनकी महसूस हो रही होती है। जो लोग बहुत पावरफुल होते हैं, जो लोग जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, या वो लोग जो ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, या वो जो पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं, उनकी एक एनर्जी होती है। हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जिनकी ऐसी एनर्जी होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ हमारे टीचर्स होते हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल लो होती है। वो बाय द बुक्स चलते हैं, लेक्चर दिया आए खत्म, कोई गपशप नहीं लगाई, कोई बातचीत नहीं की, कोई इंटरेक्शन नहीं किया। तो उससे भी आप अगले के बारे में बहुत कुछ गेज कर सकते हैं। फीलिंग्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज में फीलिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। आंसू निकलते हैं, आपको पता चलता है अगला या तो दुख में है या गम में है, या उसको बहुत ज्यादा खुशी है किसी चीज की, ठीक है। सिमिलरली जब आप क्लैप करते हैं तो चीज का इजहार कर रहे होते हैं, तो हर जेस्चर से, हर मूवमेंट से आप किसी न किसी इमोशन का इजहार कर रहे होते हैं, एंड दिस ऑल कम्स अंडर बॉडी लैंग्वेज। और ये 90% आपकी कम्युनिकेशन का हिस्सा इस पे मुनसर होता है। रिटन कम्युनिकेशन, व्हाट मैटर्स, लेटर्स, ईमेल्स, खत लिखने का रिवाज बहुत कम हो चुका है, मगर कोई लिखता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पर्सनली बहुत शौक है खत लिखने का, क्योंकि उसमें जो एक फीलिंग और एक इमोशन एसोसिएटेड होता है, मुझे लगता है कि बहुत मैटर करता है अगले के लिए। और अब एक विंटेज सी चीज बन गई ना, पहले तो लोग खतों किताबत ही किया करते थे, मगर राइटिंग लेटर्स इज वेरी कूल बाय द वे। ईमेल्स के जरिए, ठीक है, व्हाट्सएप और चैट एप्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, रिटन कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें आती हैं। अच्छा, रिटन की मैं बात इसलिए करूंगी और थोड़ा सा मैं ये कर दूं कि रिटन, मुझे ऐसा लगता है, अब ये इंटरैक्टिव सेशन होता तो बड़ा मजा आता है इसमें, कि मैं पूछ सकती हूँ आप लोगों से कि रिटन आसान है या वर्बल। तो रिटन ने, और स्पेशली जो चैट की एप्स हैं जितनी भी, वो व्हाट्सएप हो या कुछ और हो, उसने हमारे इमोशंस को काफी हद तक जो है वो सबड्यू कर दिया है, काफी हद तक उसको क्या कहना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है, और हम हर चीज लिख के बता रहे होते हैं। और जब हमें फोन पे बात करने का या अपने इमोशंस का इजहार सामने करने का कहा जाता है, तो हम घबरा जाते हैं और हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। लिख के बताना निस्बतन ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि अगला सामने नहीं है। जब कोई बंदा सामने होता है तो बहुत 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 मुश्किल होता है कोई चीज कम्युनिकेट करना, बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे लिए भी बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मगर लिखना आसान है, क्योंकि आप देख नहीं सकते अगला फील कैसा कर रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ उसके अल्फाज पढ़ रहे होते हैं। तो इस वजह से लिखने वाली कम्युनिकेशन जो है वो उसने बहुत आसान बना दी हैं चीजें। ईमेल्स फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपकी काफी ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा जॉब एप्लीकेशन जब आप दे रहे होते हैं, दैट आल्सो कम्स अंडर फॉर्मल। यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स, यूनिवर्सिटी के अपने पोर्टल्स होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, अनाउंसमेंट्स के लिए ईमेल्स आ रही होती हैं। और ब्रांड्स वगैरह जिस तरह कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आप लोगों से, अगर आपके ईमेल्स में प्रमोशंस आ रही हैं, कोई दराज की प्रमोशन आ रही है, कभी कभी किसी ब्रांड की प्रमोशन आ रही है, वो वाली सारी जिन पे कभी ना कभी आपने अपना ईमेल एड्रेस डाला होता है,
और एंड देन सोशल मीडिया के जितने भी फॉर्म्स हैं वो सारे के सारे आपके रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, रिटन में भी आते हैं और अब वर्चुअल भी मीडियम आ गया है, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी वास्ट एरिया टू डिस्कवर बाय द वे। वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, जब आप काम करते हैं, जब आप बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन सी जो है वो चीजें होती हैं, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ चीजें, कुछ टिप्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो मेरे तजुर्बे से मैंने जिन चीजों का मुझे तजुर्बा रहा है मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी। सो वर्क प्लेस पे, यानी अच्छा वर्क प्लेस कैन बी एनीथिंग, ठीक है, मैं आपकी यूनिवर्सिटी को भी वर्क प्लेस कह रही हूँ इस वक्त, मैं आपके जहाँ पे आप जॉब करेंगे इंशाल्लाह ताला उसको भी मैं वर्क प्लेस कह रही हूँ, अगर आपका अपना कोई बिजनेस होगा तो मैं उसको भी वर्क प्लेस कह रही हूँ। इसमें फॉर्मल भी है, इसमें इनफॉर्मल भी है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ काम की बात करना। लेट्स सपोज कि जी आपके कोई टास्क है, जैसे टू डू लिस्ट बनाई हुई है जी, आज का ये टास्क है, मीटिंग्स कंडक्ट करनी है, मीटिंग्स के जो नोट्स बनाने हैं, इसके अलावा जिन प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम कर रहे हैं, आइडियाज जहन में आ रहे हैं, उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। इसके अलावा जो है वो, अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो जी मेरा फलां ऑर्डर जाएगा, इतने पैसे आए हैं, बैंक की मैनेजमेंट हो गई, a lot of stuff। तो जितनी भी बिजनेस रिलेटेड कम्युनिकेशन है, काम से रिलेटेड कम्युनिकेशन है, बॉस को इत्तला देनी है वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी आपकी फॉर्मल के जिम्मे में आती हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये है कि गॉसिप, ठीक है, अगर आपके वर्क प्लेस पे या आपके बिजनेस में आपके कोई दोस्त हैं या दोस्त बनते हैं, तो उनसे आपने गॉसिप की हुई है, गपशप लगाना लंच के टाइम पे, या इवन वैसे भी सुबह आते हुए इसके बारे में बात, उसके बारे में बात। इसके अलावा पर्सनल प्रॉब्लम्स अगर कोई अपनी शेयर कर रहा है तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। दोस्ती यारी जो वर्क प्लेस पे होती है वो भी फॉर्मल के जिम्मे में नहीं आती, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है। यूजुअली जो रूल ऑफ थंब है, अगर देखा जाए, जो फॉलो किया जाता है स्ट्रिक्टली बिजनेसेस में, वर्क प्लेसेस में, दैट इज ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस, पॉइंट नंबर 1 and 3। ये दो फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, और व्हाट्सएप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो ऑफिस की जनरल सेटिंग होती है। मगर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम व्हाट्सएप को भी जो है वो वर्क प्लेस कम्युनिकेशन के लिए बाज़ औक़ात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिनमें पता चला कि भाई किसी ने अप्लाई किया जॉब के लिए, ईमेल के थ्रू एप्लीकेशन उन्होंने डाली, अगले ने उनके नंबर पे सीवी से नंबर निकाल के उनको व्हाट्सएप किया, नाइस डीपी, हेलो वी वुड लाइक टू स्केड्यूल योर इंटरव्यू, और आपने डीपी क्यों नहीं लगाई है, आपको डीपी लगानी चाहिए, और इस तरह की बात बहुत सारे लोग जो है वो कर रहे होते हैं। ये सारी की सारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है और इसका काम से कोई लेना देना नहीं होता है। इस बात को आइडेंटिफाई जितना जल्दी कर लिया जाए उतना ही ज्यादा आसान होता है अगले के लिए, कि वो अगले को किस तरह फिर काउंटर कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। आजकल रिपोर्टिंग बहुत आसान हो गई है, बाय द वे साइबर हरासमेंट के बारे में भी जरूर पढ़ा करें, कि अगर आप काम की बात किसी से कर रहे हैं और अगर आपसे वो उल्टे सीधे सवाल करे या इनफॉर्मल होने की कोशिश करे, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, स्पेशली फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, कि आप उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करें, मजीद उससे कोई भी बात ना करें। तो टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स फॉर्मल के लिए, ठीक है, काम की बात हो गई खत्म। एंड व्हाट्सएप इनफॉर्मल के लिए, अगर आपने किसी से, कोई आपके कॉलीग हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, जो भी हैं जिनसे आपने बात करनी है, या इवन अगर यूनिवर्सिटी की सेटिंग में इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स और व्हाटएवर, तो आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में आपके कौन कौन से टूल्स हैं जी? मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, ट्विटर भी है, टिकटॉक भी है, स्नैपचैट भी है, 10,000 और ऐप्स हैं जिनसे आप ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा ग्रुप इंटरैक्शंस, ठीक है, ग्रुप इंटरैक्शंस में आपका जो है वो अगर आप फेसबुक ग्रुप्स पर हैं, अगर आप क्या कहना चाहिए, I'm sorry, I kind of lost the tracks. Yeah, so group interactions, यानी कि अगर आप फेसबुक ग्रुप्स पर हैं, फेसबुक ग्रुप्स आजकल बहुत एक्टिव हैं, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग ज्वाइन करते हैं, मगर बहुत अच्छे और बहुत प्रोडक्टिव ग्रुप्स हैं। मैं यही
आप लोगों को कहूंगी कि एक्सप्लोर करें और देखें कि आपके काम के क्या ग्रुप्स हैं। जैसे बहुत बड़ा एक ग्रुप है कराची शेफ्स एट होम, आई डोंट नो आप लोग को इसके बारे में इल्म है या नहीं है। वो उसमें रेसिपीज हैं, लोग अपने घरों की, अपने कल्चर की, यहाँ की, वहाँ की, दुनिया की 10,000 रेसिपीज वहाँ शेयर कर रहे होते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें लाखों के करीब जो है वो खवातीन है जो उससे बेनिफिट हासिल करती हैं एंड देन एक दूसरे को दुआएं दे रही होती हैं। सिमिलरली स्कूल्स के ग्रुप्स होते हैं, इसके अलावा आपके कॉमन इंटरेस्ट के ग्रुप्स होते हैं, क्राफ्ट के ग्रुप्स होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग के ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें खवातीन जो है वो खवातीन हो गए, हजरात हो गए, बड़े बिजनेस, छोटे बिजनेस आके जो है वो अपनी चीजें शेयर कर रहे होते हैं। तो उन ग्रुप्स में भी इंटरैक्ट किस तरह से करना है वो भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन के अंदर आता है। क्या आप कमेंट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, या आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप साइलेंट मेंबर हैं, दैट कम्स अंडर ऑनलाइन कम्युनिकेशन। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट कम्युनिकेशन, नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपकी कोई भी चीज जो कि पब्लिक है, जब आप उसमें जाते हैं और आप सेटिंग्स लगाते हैं, एंड इफ इट्स पब्लिक विच मीन्स कि उसको हर कोई देख सकता है। अगर आपने उसकी सेटिंग प्राइवेट की हुई है विच मीन्स कि सिर्फ आप उसको देख सकते हैं या क्लोज फ्रेंड्स उसको देख सकते हैं। तो प्राइवेसी सेटिंग्स जब भी आप कोई भी चीज शेयर कर रहे हैं अपनी टाइमलाइन पे, तो जरूर देखा करें कि वो कितने लोगों को विजिबल है। अगर आप शेयरेबल बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जी और लोग पढ़ें, आप उसको शेयरेबल बना सकते हैं और उसको पब्लिक कर सकते हैं। इससे होता ये है कि आपकी बहुत सारी अच्छी बातें, अगर आपने लेट्स सपोज आपको कुछ प्रमोट करना है, आपने कुछ लिखा है और आप चाहते हैं कि आप सारे लोगों के साथ शेयर करें, आप उसको जितना पब्लिक करेंगे लोग आपकी चीज को पसंद करेंगे, आगे शेयर भी करेंगे। और प्राइवेट कम्युनिकेशन में जो आपके पर्सनल मैसेंजर पे हो रही है, डीएम में हो रही है, ठीक है, कि कोई आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल इस बात का रखना पड़ता है कि आप कितना कम्युनिकेट करें, किस तरह से कम्युनिकेट करें, एंड अगर खुदा ना खास्ता कोई इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी है तो आप उसको रिपोर्ट करें। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में एक्सक्यूज मी, लैंग्वेज पैटर्न्स और शॉर्ट फॉर्म्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ये जो रोमन बहुत कॉमन हुई है, रोमन में लिखना, जो ना अंग्रेजी है ना उर्दू है ठीक है ना, जो हम एसएमएस भी जिस हिसाब से कर रहे होते हैं, इवन व्हाट्सएप पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अक्सर हम अपने स्टेटस भी डाल रहे होते हैं। जबान उर्दू होती है मगर स्क्रिप्ट जो है वो अंग्रेजी का होता है, दैट इज जो है वो रोमन लैंग्वेज। इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म्स बहुत सारी इस्तेमाल होती हैं जिनका मीनिंग समटाइम्स मुझे भी नहीं पता होता, आई एम नॉट अ न्यू जनरेशन पर्सन। तो बहुत सारी ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स होती है, मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ ओके आई डोंट नो, मैं उनको गूगल करती हूँ, फिर समझ आता है कि अच्छा इनका ये शॉर्ट फॉर्म था। कॉमन शॉर्ट फॉर्म्स हो गए जैसे LOL हो गया, IDK हो गया, आई डोंट नो, LOL लाफ आउट लाउड हो गया, बेसिक से IKR, आई नो राइट। तो वो बहुत ज्यादा कॉमनली जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हा हो गया, हा हो गया, ठीक है तो हंसी आ रही होगी आप लोगों को ये सारी बातें सुन के, क्योंकि हम इतना कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, हमें नहीं आइडिया होता बाज़ औक़ात के हम अपनी जबान के साथ क्या कर रहे हैं। और इससे हो ये रहा है कि हमारे जो लिखने के तरीके हैं वो बहुत चेंज हो रहे हैं, हमारा जो बोलने के तरीके भी हैं वो भी बहुत चेंज हो रहे हैं, राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। So these were some of the things. Before I jump into the questions, of course, मैं इसमें ये भी जो है वो जरूर ऐड करना चाहूंगी, एक दो चीजें जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके कम्युनिकेशन में। इसमें वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करना चाह रही थी, वो ये कि जब आपकी वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में जब आप वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, आपकी बॉस के साथ कोई बात हो रही है या आपके कॉलीग के साथ कोई बात हो रही है, अच्छा बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं जो बाज़ औक़ात बताना बहुत मुश्किल है। रेजिग्नेशंस, ठीक है, बहुत घबराहट होती है, मेरे साथ ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि मुझे जब भी जॉब से रिज़ाइन करना पड़ा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ टाइम वो था मेरी जॉब के अंदर, जब मुझे बताना पड़ा बॉस को कि मुझे जॉब छोड़नी है। बाज़ लोगों के लिए बहुत आसान होता है ये बताना और बाज़ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। आप किस तरह अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं, क्या रीज़न देते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, और अगर आपके पास ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है, अगर आपका बॉस आपसे वो काम करवा रहा है लेट्स सपोज जो कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें सबसे पहले तो कि जी ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है, और फिर आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए वर्बली भी या रिटन में भी कि सर ये मेरी जॉब के जिम्मे में नहीं आता,
इस चीज के मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं एंड दिस इज नॉट द टास्क दैट आई एम गोइंग टू डू। बाज़ औक़ात होता ये है कि प्रेशर आप पे इतना ज्यादा पड़ जाता है और आपसे काम वो निकलवाया जाता है जो कि आपके जेडी में नहीं है, जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, एंड देन अनफॉर्चुनेटली आपका आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट खत्म होता चला जाता है। तो ये भी, इसमें भी कम्युनिकेशन की बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं या टूल्स हैं, या उसमें फिर हम बहुत ब्रॉडली अगर देखें तो डिफरेंट तरीके से आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का इस्तेमाल कम से कम रखें बिजनेस कम्युनिकेशन में, फॉर्मल कम्युनिकेशन में, जो कि मैंने आपको कहा, क्योंकि व्हाट्सएप कंसिडर ही इनफॉर्मल आपकी कम्युनिकेशन में होता है। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि जी हम किसी के साथ जो है वो हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं अपने किसी कॉलीग के साथ, मगर कॉलीग शायद उसको गलत मायने में ले रहा है, एंड देन समटाइम्स बहुत सारी चीजें बिगड़ भी सकती हैं। तो इट्स बेटर कि आप काम की कम्युनिकेशन जो है वो काम की हद तक रखें और घर की कम्युनिकेशन जो है वो घर की हद तक रखें। इसमें एक और चीज भी बहुत जरूरी है कि आपके टाइम डिफाइन करें, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्क प्लेस की कम्युनिकेशन के टाइमिंग्स होने चाहिए। जब आपकी जॉब खत्म हो गई, दैट इज इट। जॉब खत्म होने के बाद आपका कोई भी कम्युनिकेशन आपके बॉस के साथ नहीं होगा until and unless it's an emergency या urgency के जी कोई चीज रह गई है। That's why it's called work। ठीक है, काम के घंटे। हमने टाइम मैनेजमेंट किया, हमने टाइम मैनेजमेंट सीखा, अपनी टू डू लिस्ट बनाई, हमने चंकिंग की, हमने डिवीजन की। ये सारी चीजें हमने इसलिए की क्योंकि हम काम को काम के हिस्से में रख रहे हैं और अपने घर को, अपने लेजर और अपने आप को दूसरे हिस्से में रख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बताना और कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी होता है। एंड देन ऑफ कोर्स ऑनलाइन कम्युनिकेशन में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप किन प्लेटफॉर्म्स पर हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, किसी अननोन से बात कर रहे हैं या नोन से बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी कोई भी चीज अगर आपको इवन लगता भी है कि जी इट्स प्राइवेट और इंटरनेट के स्पेस में मैंने डिलीट कर दी तो खत्म हो गई, नहीं, इट ऑलवेज रिमेन्स समवेयर। किसी न किसी तरह से वो डाटा में महफूज होती है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं। इसमें मैं एक एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज तो नहीं, मैं सेशन करवाती हूँ ऑनलाइन कम्युनिकेशन के एथिक्स का और ऑनलाइन कम्युनिकेशन साइकोलॉजी का, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि बिहेवियर किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी का जब वो ऑनलाइन कम्युनिकेट करता है। बाज़ औक़ात फटेबाजी चल रही होती है ना, ठीक है, कहीं कमेंट पे कोई बहस चल रही है, कभी इस्लाम के हवाले से बहस चल रही है, कहीं पे किसी जो है वो सोशल इशू के बारे में बहस चल रही है। हमारा बड़ा दिल करता है, हम बहुत इमोशनल हैं जनरली, और बहुत अच्छी बातें होना भी चाहिए। वो कुछ ऐसे मसाइल होते हैं या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दिल को अच्छी नहीं लगती और हम चाहते हैं हम उनके बारे में बात करें। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस इज कि आप वो अच्छा खासा वक्त अपना सिर्फ कमेंट वॉर्स में, कमेंट में एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हुए जाया कर देते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे उस बहस का कोई नतीजा नहीं होता है। तो बी वेरी पिकी, बी वेरी कॉशियस कि आप जो है वो किन किन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको कहाँ फायदा हो रहा है, कहाँ पे नुकसान पहुंच सकता है। दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्टिव बनाएं अपनी ऑनलाइन कम्युनिकेशन को, प्रोडक्टिव बनाएं। ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, ऐसे लोगों के साथ आप जो है वो कम्युनिकेट करें जो कि आपको किसी ना किसी तरह हेल्प आउट कर सकें। रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, ऑथर्स हैं जो कि बहुत मजे मजे की चीजें लिखते हैं, बहुत अच्छी चीजों पे काम हो रहा होता है, उससे आपको काफी सारा फायदा हासिल हो सकता है। मैं बैक एंड फोर्थ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीजें याद आ रही थी, मैंने कहा कि मैं मिस आउट ना कर जाऊं, एंड आप लोगों को उसके हवाले से जो है वो मैं बताती चलूं। एंड आई थिंक दैट विल बी इट। मेरे ख्याल में बॉडी लैंग्वेज पे मैंने सबसे ज्यादा फोकस इसीलिए किया और लैंग्वेज पैटर्न्स के ऊपर, क्योंकि ये दो चीजें अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन में स्पेशली अगर आपको समझ आ जाती है तो नथिंग लाइक दैट, ये आपको सारी जिंदगी ये सारी चीजें जो है वो बहुत बहुत ज्यादा काम आएंगी। और इंशाल्लाह ताला मैं एक्सक्यूज मी पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे पास जो मेरा पूरा टूल बॉक्स है जो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, रिटन कम्युनिकेशन का, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँ इंशाल्लाह ताला। एंड hopefully we've something out of it inshallah. I think
मेरे हिसाब से तो मैंने काफी सारी चीजें जो है वो कवर की हैं। बॉडी लैंग्वेज में भी आई थिंक आई कवर व्हाट आई वांटेड टू। दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। हमारे पास रफली अबाउट 10 मिनट जो है वो बाकी हैं। तो ओवरऑल आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, ओवरऑल अगर आपको कोई चीज जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मजीद उसको खोल के बयान किया जाए और उसके बारे में बात की जाए, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। अच्छा खासा टाइम होता है 10 मिनट का, तो प्लीज मैं अपनी वीडियो भी ऑन कर देती हूँ सो दैट वी कैन हैव अ प्रॉपर interaction. I'll stop sharing the screen and here we go. Okay. हाँ जी. Questions, comments, feedback, anything. वालेकुम अस्सलाम. Loud बोलो बच्चे. हमारे बहुत लोगों के लेकिन हमें बताया मैम आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, अब पूछो. मैम थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दिया, इतना अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। Thank you. Thanks a lot. अस्सलाम वालेकुम मैम आप वालेकुम अस्सलाम. मैम आपका सेशन बहुत हमारे लिए इंफॉर्मेटिव था और यहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखे। कम्युनिकेशन के हवाले से बीइंग अ स्टूडेंट हमें बहुत ज़्यादा काम आएगा कि हम अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इसको कैसे डेवलप करें और कैसे किसी दूसरे पर्सन से जब हम कम्युनिकेट करते हैं वो हमारा डिफिकल्ट है तो हमें कैसे हेल्पफुल मिलेगा कि हम अपनी लैंग्वेज को, अपनी टोन, अपनी बॉडी लैंग्वेज है जो एज जेस्चर है इनको हम कैसे मेंटेन रखें। Thank you so much, ma'am. Thank you. I'm glad. I really appreciate. बहुत शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम. मैम आई एम परुषा मिंगल। मैम मेरा एक प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का कि हमेशा मतलब किसी ऐसे इंसान से मैं पहली बार मिलती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है कि मैं उससे कैसे स्टार्ट करूँ और कैसे उससे अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको डेवलप करूँ और जो मतलब हमारे दरमियान कैसे कम्युनिकेशन फिर जारी हो सके। इस हवाले से मुझे हमेशा प्रॉब्लम होती है कि जब मैं पहली बार किसी से मिलती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि मुझे कैसे उससे बात स्टार्ट करनी चाहिए। ओके श्योर. मैं बताती हूँ. ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. प्लीज हैव अ सीट. आप बैठो, मैं बताती हूँ. ये बहुत कॉमन इशू है और मजे की बात ये कि मेरे साथ भी होता है कि जब भी किसी नए बंदे से मिलो तो नहीं समझ आती बंदे को कि आपने बात कैसे स्टार्ट करनी है, आपको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए. एक आदत हमें अपने अंदर करने की जरूरत है और मेरे जो इंस्ट्रक्टर हैं एनएलपी के टीचर है कामरान सुल्तान साहब, उन्होंने ये सिखाई थी कि आप होता है ना कि आपको लग रहा होता है आप स्पॉटलाइट में हैं, आप अगले को स्पॉटलाइट में डालें और सवाल करें. ठीक है, कोई भी रैंडम सवाल आप कर लें कि अच्छा लेट्स सपोज इसी से जब वो रेपो, सबसे पहले तो मैंने आपको जो रेपो बिल्डिंग की एक्सरसाइज है ना वो आप करें, उससे बहुत फायदा होगा कि अगला खुद ही जो है वो इंटरेस्टेड होगा आपसे बात करने में. आस्क क्वेश्चंस कि भाई आप कहाँ से हैं, आपकी क्या हॉबी है, बेसिक सी चीजें, छोटे मोटे से बेसिक से सवाल होते हैं. एंड देन बात से बात निकालें, सवाल से सवाल निकालें. सो लेट्स सपोज कि जी मैं आज, इनफैक्ट मजे की बात ये कि मैं आज कहीं पे थी तो मेरी मुलाकात हुई पहली मर्तबा एक खातून से.
तो सलाम दुआ हुई और उसके बाद मैंने एमी जिक्र छेड़ दिया। मैंने कहा भाई आपका जिक्र बहुत सुना है मगर मुलाकात आपसे पहली दफा हो रही है, वो थी अफगानिस्तान की। तो मैंने डॉट्स कनेक्ट किए, मैंने कहा चलो अफगानिस्तान से बात शुरू करते हैं, वहां की किसी चीज से बात स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने थोड़ा कल्चर के बारे में बताया, थोड़ा खाने के बारे में बताया, एंड देन बात से बात निकलती गई। तो कोई भी ऐसी चीज जब भी आप किसी से मिलते हैं, किसी नए इंसान से, या तो उससे मिलने से पहले थोड़ी सी उसके बारे में रिसर्च आप करें कि अगला कहाँ से है, क्या है। जैसे मैं आप लोगों से पहली दफा इंटरैक्ट कर रही हूँ, मगर मैंने आप लोगों के बारे में पूछा है कि जी आप कहाँ के स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों का क्या बैकग्राउंड है, किस शहर से हैं आप लोग, एंड देन अभी तक आप लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि अच्छा ठीक है, मुझे अपने कंटेंट को किस तरह से डिजाइन करना है। तो अगर आप उसके बारे में पहले से जान सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, वेरी गुड। अगर नहीं कर सकते तो बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन से आप स्टार्ट करें, सवाल पूछने से कि जी आप कहाँ से हैं और आपका जो है वो बैकग्राउंड क्या है, वगैरह वगैरह। एंड यू नो विद क्वेश्चंस आप बहुत इजी फील करेंगे किसी के साथ भी कम्युनिकेट करने में। मैम थैंक यू सो मच। इस सेशन से हमने बहुत कुछ सीखा और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, और इंशाल्लाह मैं ये जो आपने कहा मैं इसको ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वी हैव 5 more minutes। अगर एक आध और क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लीजिए, उसके बाद मैं सेशन रैप अप कर लूंगी। मैम सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने और मतलब मैम आपने हमें ये बताया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बताए। तो मैम मतलब हमने बहुत कुछ यहाँ से सीखा, लेकिन हम और ज्यादा सीखना चाहते हैं। तो हम अगर आप हमें इस बारे में कुछ बुक्स प्रेफर करें कि हम वो बुक्स पढ़ें और मतलब इस और ज्यादा डेवलप करें अपनी टाइम मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स। सॉरी, आप दोबारा पूछ सकते हो, आपकी स्क्रीन रुक गई थी माय डियर। मैम पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया टाइम मैनेजमेंट से और कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से। तो मैम हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन हम इसको और ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं ताकि हम कभी अपनी सिटी से या अपने सूबे से बाहर जाए तो हम कम्युनिकेट कर सके अपने मतलब बाहर के लोगों से। तो आप हमें इस बारे में कुछ बुक्स रेफर करें कि हम वो बुक्स पढ़ें और हम इस अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और डेवलप करें। ओके, मैं जरूर आप लोगों के साथ कुछ बुक्स के नाम और इनफैक्ट उनका अगर पीडीएफ लिंक्स हुए तो मैं जरूर शेयर करूंगी। कुछ बुक्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती हैं, मगर ये है कि जो लोकली अवेलेबल होंगी मैं जरूर रेकमेंड करूंगी कि वो आप पढ़ें। मसला ये है किताबों के साथ कि वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स की किताबें पाकिस्तान में है ना, वो बहुत आउटडेटेड हैं। जो इवन मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास में पढ़ी थी, वो किताब लिखी गई थी कोई 1950 या 1960 में। 1960 का कम्युनिकेशन और 2020 के कम्युनिकेशन में बहुत फर्क है। तो मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की किताबें तो आप लोगों को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी। इनफैक्ट मैं कुछ आर्टिकल्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें मॉडर्न कम्युनिकेशन, जिस तरह से मैं आप हम सब आजकल जिस तरह बातचीत करते हैं, उस पर काफी ज्यादा फोकस होता है। तो वो मैं लिंक्स आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। कुछ आर्टिकल्स हैं बहुत काम के जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। यानी सोशल अकाउंट मतलब सोशल मीडिया पे हम आपको कैसे फॉलो करें? आई एम सॉरी, सोशल अकाउंट आपका कोई अलग है जो आपको हमारे साथ शेयर कर सकते हो, आपको फॉलो कर सकते हैं? ओके, मेरा सोशल अकाउंट फेसबुक पे उम्मे कुलसूम के नाम से है। मैं चैट में लिख देती हूँ, इट्स उम्मे कुलसूम। और अगर लिंक आप चाह रहे हैं तो दैट्स facebook.com/umme.kulsum1।
ठीक है, गेट इन टच विद मी। मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट शायद एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मगर मैसेंजर में मैं सबको रिस्पॉन्ड कर रही होती हूँ। एनीवन हु वांट्स टू हैव इंटरेक्शन विद मी, और कोई भी क्वेश्चन हो आपके ट्रेनिंग सेशन के हवाले से। वैसे मैं एक फोल्डर कंपाइल कर रही हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, एंड उसमें काफी सारी चीजें जो है वो लिंक्स, बुक्स के नाम, कुछ PDF फाइल्स, वर्कशीट्स वगैरह उसमें सारी होंगी। ठीक है। और हमें ये बताया कि हम अपने जो है ना कीमती वक्त को मतलब वेस्ट करने से बचाएं, क्योंकि वक्त बहुत कीमती होती है। हमें मालूम हो गया कि वक्त मतलब वक्त होती है, वो आती है, दोबारा नहीं आती है, क्योंकि हम उसे वेस्ट करने से बचाएं, क्योंकि हम उसमें अच्छे अच्छे काम करें। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग माशाल्लाह बहुत पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छे हैं। यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब माशाल्लाह। और टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, एंड अपना आप लोग ख्याल रखिएगा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, और पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह ताला रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सहर। It's bye bye from my side. Thank you so much, Kulsum, for conducting an amazing session. I hope the audience had a great chance to learn new things from you. Thank you so much once again for taking out your time. And thank you to the University of Sardar Bahadur Khan Women University for attending this session. So we are signing off. Allah Hafiz, everyone.